وہ تیز ہواؤں کی سنگ چھلانگیں لگاتی ہوئی اپنے محبوب کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہوا کی زور سے بال اس کے منہ پر ٹھا کر کے بجے تو اس نے انہیں اپنے کھردرے ہاتھوں سے نرمی سے پیچھے ہٹایا اور بادلوں سے ڈکے آسمان کو دیکھتی جناتی کہہ لگاتی اپنے محبوب کی نازک پناہوں میں جا سمائی۔ اس کے دل کے چین پلس فرائنگ پین جیسے منہ والے محبوب نے شرما کر رخ موڑا تو وہ بتیسی نکال کر اس کے کندھے سے کندھا ماری شرمانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اس کے رج کے کوجے ٹوٹی ٹھوٹی جیسے محبوب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا تو وہ اس کی نازک اندام کی اس حرکت پر حیرت سے دیکھنے لگی۔ ہیر! ایک مردانہ کڑکدار آواز سے خیالوں کی دنیا سے باہر لے آئی۔ اس سے پٹ سے آنکھیں کھولی، اینک سے جھانکتی کالی بڑی بڑی آنکھیں اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھ کر پھیل گئی۔ تب اسے احساس ہو یونیورسٹی میں موجود تھی۔ ماتھے پر گرے بیبی کٹ بالوں کو آنکھوں سے ہٹا کر اس سے تھوک نگل کر اپنے ہاتھ کو دیکھا جس سے اس نے اپنے پروفیسر کے کالر کو جکڑ رکھا تھا۔ سوری پرو ہاتھ فوراً سے پیچھے ہٹاتے اس منمنانے کی کوشش کی۔ شٹ اپ، جس شٹ اپ، آج تمہیں کوئی رعایت نہیں ملے گی، میرے ساتھ آفس آؤ۔ پروفیسر کے تیکھے نقوش میں سرخی گلی دیکھ کر اسے آج اپنی خیر ہوتی نظر نہیں آئی۔ دیکھیے پروفیسر بارش، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ غلطی سے۔ ایک نظر پروفیسر پر ڈال کر دوسری نظر اس نے پاؤں میں مقید جوگرز پر ڈالی۔ 1 2 3 بالوں میں بندے پراندے کو جھٹکے سے پیچھے ڈالتی بیگ پکڑ کر اس نے دوڑ لگا دی۔ ہی رکو! پروفیسر بارش نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ پکڑو اسے! ارد گرد موجود اسٹوڈنٹ پروفیسر کا اشارہ پا کر شلوار قمیض میں ملبوس پراندہ جھلا کر دوڑتی ہیر کے پیچھے بھاگے۔ ہیر جو سانس درست کرنے کے لیے رکی تھی اپنے پیچھے آتے اتنے اسٹوڈنٹس کے ہجوم کو دیکھ کر سر پہ پیر رکھ کر بھاگی۔ ہائے اور ربا، کتنے پھنس کے ہیر! عالم ودا میں آج معمول سے ہٹ کر چہل پہل تھی۔ اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو کچن سے نکل کے بڑے سے صحن سے ملحقہ اوپر گولائی میں جاتی سیڑھیوں سے ہوتی کونے والے کمرے میں دستک دیتی ہیر کے ناک میں گھسی۔ پٹ سے آنکھیں کھولتی وہ جمائی لے کر اٹھی۔ آج اس خڑوس کی وجہ سے جتنی ستھری ہوئی ہے میں یاد رکھوں گی، سڑا ہوا کدو کہیں کا۔ اسے دل ہی دل میں القابات سے نوازتی وہ پیروں میں چپل اڑستی کنسوئیاں لینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ بڑے سے صحن کا عبور کر کے وہ کچن میں آئی جہاں درخشاں تائی اور بلکیس چاچی کھانے کے انتظامات دیکھ رہی تھی۔ اسے اندر دیکھ کر درخشاں شنو نرمی سے مسکرا دی جبکہ بلکیس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ ہیر نے سلگ کر انہیں دیکھا اور انہیں منہ چڑھایا تو شنو نے نظروں سے اسے ڈپٹا۔ تائی جان، آج کچھ خاص ہے کیا؟ وہ پلیٹ سے کاجو اٹھا کر منہ میں ڈال کر بولی۔ ہاں خاص تو ہے، وہ مصروف سے انداز میں بولی تو ہیر ان سے لپٹ کے بتایا نا میری پیاری تائی جان۔ اچھا پیچھے تو اوینا کو لڑکے والے دیکھنے آئے۔ کیا؟ مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں۔ اسے صحیح معنوں میں صدمہ پہنچا۔ تم بڑی کوئی پرائم منسٹر ہو جو تمہیں ہر بات بتائی جائے؟ بلکہ جلے کٹے انداز میں بولی۔ ہاں پرائم منسٹر تو وہ آپ کی 2 من کی بیٹی ہے نا جس کو ہر بات بتانی ضروری ہے۔ ان کی چھوٹی بیٹی کے موٹاپے کو چوٹ کرتی وہ پراندہ جھلاتی اپنے اصلی بے پرواہ انداز میں مہمان خانے کی طرف بڑھی۔ ہائے اور ابا، یہاں تو پوری ینگ پلٹن کھڑی ہوئی ہے۔ آہستہ آہستہ بغیر ہٹ کے ان کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی جو ایک قطار میں ایک دوسرے پر چڑھے دروازے سے کان لگائے کھڑے تھے۔ بھاؤ! اپنے پیچھے آواز پڑنے پر وہ سب کے سب سیدھے ہونے کی کوشش میں توازن کھو کر دھڑام سے نیچے گرے۔ منحوسہ کمبختہ دفاع ہو جاؤ ایتھو، نہیں تو میں لا جتی لینی ہے تو تہاڈی منحوس بوتیاں دا نقشہ بدل دینا ہے۔ شاہانہ بیگم کی کڑک آواز اور سب کے سب بجلی کی سپیڈ سے دوڑے صحن میں آ کر رکتے وہ کڑے تیوروں سے ہیر کی طرف مڑے۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ مسرا خفکی سے گویا ہوا۔ ہم ایک ٹیم ہے تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ ارے کیری ٹیم کتنے دی ٹیم؟ تم نے کون سا مجھے اوینا کے رشتے کا بتایا؟ میرے پارٹنر کا رشتہ طے ہو رہا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں۔ وہ دیدے نچا کر بولی۔ ہیرا پی، آپ کی وجہ سے ہمیں ڈانٹ پڑی۔ لڈو کے بولنے پر ہیر نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ ابے لڈو کی پھوٹی ہوئی قسمت، کدو کے بگڑے نصیب، چل نکل یہاں سے نہیں تو تجھے ساتھ والوں کے کتے کے ساتھ باندھ لاؤں گی۔ اپنی حد میں رہو تم بندری۔ ریچا کو اپنے بھائی کی بے عزتی برداشت نہ ہوئی۔ لو جی، اب یہ کمپلیکس کی ماری مجھے میری ہاتھ بتائے گی۔ چلو شاباش، اپنی زہریلی بھینس اور پدے بھینسے کو لے کر نکلو یہاں سے۔ وہ موسیٰ کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑی۔ تم بچو اب مجھ سے۔ رابعہ اس کی زہریلی بھینس کہنے پر تپکڑ اس کی اور بڑی تو موسیٰ درمیان میں آ کے چلو بس بہت ہو گیا۔ ان کو ہٹا کر وہ ہیر کا بازو پکڑتا مہمان خانے کی طرف آیا۔ ہیر نے ذرا سا دروازہ کھولا، وہ دونوں سانس روک کے اندر کا منظر دیکھنے لگے۔ بیبی، آپ تو ایسے تیار ہو کر بیٹھے جیسے آپ کا رشتہ دیکھنے آئے ہیں۔ شاہانہ کی گوہر افشانی پر کمرے میں دبی دبی ہنسی گونجی۔ ہاں بس اپنی اپنی بات ہوتی ہے نہ، میں اس عمر میں اتنی حسین جوان نظر آتی اور ایک تم ہو جو مجھ سے چھوٹی ہو کر بھی ایسے لگتی ہے جیسے کسی نے وہ سننے مار مار کر منہ نیلا کر دیا ہو۔ کیوں جی؟
मासूमा अपने साथ विराजमान सबकतगीन आलम को ठोका देकर बोली तो चाचा वहाज आलम और ताया आबाद आलम खनकारे। इब्राहिम आलम ने मौका की नजाकत को भांपते कोने में खड़े अपनी भतीजी को इशारा किया। वो सहज सहज कदम उठाती सोफे पर आकर बैठ गई। लंबे कुर्ते और जीन में मलबूस वो मुश्किल छोटा सा दुपट्टा सर पर टकाए बैठी थी। उसने बार बार पलके झपक कर सामने सोफे पर बैठे मियाँ बीवी को देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा दिया। जवाबन वो दुपट्टा दांतों में दबा गई। माशाल्लाह आपकी बेटी तो बहुत प्यारी शर्मीली लगती है। हाँ जी, बहुत शर्मीली और मासूम है हमारी अमीना अपने नाम की तरह। और शहाना के बिल्कुल बरक्स। मासूमा भी अपना सफेद गरारा ठीक करते हुए बोली तो शहाना ने तब पर उनको देखा। ना तो क्या आप पर गई है? हाय हाँ, अल्लाह माफ करे, आप पर चली जाती तो आपकी तरह बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम बनी फिरती। शहाना ने अपनी फराटे भरती जुबान से मासूमा बी के तन मन में आग लगा दी। मेहमान कौमों की कैफियत में उन्हें देखने लगे। अमीना बेटा मेहमानों को चाय दो। आबाद आलम बेटी से मुखातिब हुए तो उठ खड़ी हुई। एक कदम आगे बढ़ाकर वो जरा सा लड़खड़ाई। हाथ से जरा कामते हाथ उसने ट्रे उठाई और मेहमानों के सामने झुकते उनको सर्व करने लगी। हाथ टुक पाने से इसके ऊपर थोड़ी सी चाय गिर गई। बस बेबे मुझसे अब और अदाकारी नहीं होती। वो हाथ झाड़ कर उठ खड़ी और उसने छोटा सा दुपट्टा सर से उतार कर गले में डाल लिया। मैं ऐसी ही हूँ, अपने नाम के बिल्कुल उलट। मासूम तक कहीं से नहीं हूँ। अगर ऐसे ही मंजूर है तो ठीक, वरना वो अपनी ऊंची पोनी झिलाकर बोलती मेहमानों को हैरान करके। टुट मरनी तेरी देर थोड़ी देर होर तेरे को अदाकारी नहीं हुंदी सी। सारे किते कराए थे वाटर फेर देता है। शहाना ने अफसोस से सर पर हाथ मारा। मेहमान जल्दी से उठे। हम चलते हैं, पता नहीं किन पागलों में फंस हैं। इत्थे या तेन दस्सा कौन पागल है? तेरी बेबे होएगी पागल। शहाना का बस चल रहा था इनको पागल कहने वाले की गिच्ची में डोड़ दे। ये तेरा अब्बा होएगा पागल। मासूमा बीबी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। मर्द हजरात सर पकड़कर बैठ के। मूसा और हीर मेहमानों के जाने के बाद हाथ पर हाथ मारकर हंस पड़े। अपने जिगर से यही उम्मीद थी मुझे। हीर आंखें बंद करके फिर फकरिया अंदाज में बोली। यकदम मूसा की हंसी को ब्रेक लगा। वो आराम से नीवा नीवा होता वहां से खिसक गया। हैं, एक थी क्या? वो आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगी। दफ्तर अपने हाथ पर मजबूत मर्दाना ग्रिप देकर उसने फौरन दाईं तरफ देखा, जहां बारिश करे तेवरों से देखकर उसका बाजू खींचकर उसे मेहमान खाने से परे लिया। क्या कहा सच से? किसी को मेहमान खाने के पास भी आने की इजाजत नहीं? तो तुम क्या कर रही हो इधर? वो गुस्से से माथे पर बल डालकर बोला। उसके धौंस भरे अंदाज पर हीर को पतंगे लगे। आपने जो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ किया ना, वो भूली नहीं है हीर। और घर में आप मेरे प्रोफेसर नहीं है, इसलिए ये धौंस ना मुझे ना दिखाया करें। अपना परांदा झिलाकर आंखों पर चश्मा ठीक तरह टकाती वो जाने के लिए पलटी। खड़ूस कहीं के। बारिश ने तुम नजरों से उसे देखकर उसका बाजू पकड़कर झटके से अपनी तरफ किया। क्या कहा तुमने? खड़ूस कहा मैंने आपको। वो भी तीखे लहजे में बोली। मेरे सामने ना अपनी कैंची की तरह चलती जुबान कम चलाया करो। कहीं ऐसा ना मुझे तुम्हारी टटर चलती जुबान को बंद करने का मुस्तकिल बंदोबस्त करना पड़े। उसे झटके से अपने उसे पीछे धकेला तो वहां से भागी। हीर की जुबान बंद करने वाला भी पैदा नहीं हुआ सड़ू प्रोफेसर। जाते जाते भी वो जुबान की जोहर दिखा के आलम बिला के सहन में जंगी अजीम छड़ चुकी थी। मासूमा भी और शहाना ने रिश्ता ना होने का कसूरवार एक दूसरे को ठहराया। घर के सब बड़े उनके दरमियान सुलह सफाई कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब बेसुध। शहाना अब तुम ही बस कर लो। दुर्खशा ने आगे बढ़ते उनके कांधे पर हाथ रखा। ना शन्नो भाभी, मैं क्यों चुप करूं? इनको नहीं देखती जो नाम की ही मासूम है। अल्लाह माफ करे, मासूमों वाले काम तो कभी देखे नहीं इनके। शहाना ने हंसी छुपाने को दुपट्टा मुंह पर रख लिया। दुर्खशा ने उन्हें आंखें दिखाई। देखा सबकतगीन, कैसे ये आपकी नो मुझे लजीज मना मतलब है दलील कर रही है। मासूमा बी ने तिनक कर सबकतगीन आलम के कंधे पर हाथ मारा। हाँ अल्लाह भला करे, कहती तो ठीक है मेरी नो। सबकतगीन आलम कंधा दबाकर बोले तो सब मर्द हजरात से मुस्कुराहट दबाई। अगर गलती से उनकी हंसी छूट जाती तो मासूमा बी ने उन्हें पोले पोले पैरों से ठुड्डे मारकर दुनिया के दूसरे कोने में पहुंचा देना था। हाय मैं सदके जावा बड़ी तुसी बस मैनू समझते हो। शहाना की खुशी देखकर मासूमा बी ने नत्थे फैलाकर उन्हें देखा। जे मैं मासूम नहीं थे तो किहड़ी मासूम है? पीठे वड़गे मुंह दे नाल हर वक्त बक बक करदी रहिंदी है। नाम शहाना ते मजाज दुर फिटे माना। मासूमा बीबी अपना सफेद घरारा कसकर मैदान में उतरी। वाह दादी, क्या डायलॉग मारा है। मूसा के तबसरे पर शहाना ने उसकी गर्दन पर चंड मारी। शनो भाभी इसका मुंह बंद करा ले, नहीं तो मैंने इसकी तोन पे चपेड़े मार मार कर इसकी तोन ही ढींगी कर देनी है। मूसा की इज्जत अफजाई पर रबिया की हंसी छूट की। मोटी बहन अपनी बतीसी अंदर कर, वो सुलग कर बोला तो रबिया ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। जाओ तुम दोनों यहाँ से। इब्राहिम आलम के सख्ती से कहने पर शराफत से वहां से खिसक गए। बेबी आपसे तो ठीक हूँ मैं, ये अपनी नासें इतनी ना फैलाएं जैसे आपकी उम्र है, कहीं पार्टी ना जाए। सबकत जीन आलम ने मुंह पर हाथ रखे चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन हंसी रोकने के चक्कर में उनके जिस्म को बार बार झटके लग रहे थे।
आबाद आलम, इब्राहिम आलम और वहाज आलम में नज़रों का तबादला हुआ। जाओ अम्मा को कमरे में ले जाओ। आबाद आलम इब्राहिम आलम के कान में आहिस्ता से बोले, क्योंकि मासूमा भी सबसे ज़्यादा उन्हीं की सुनती थी। अल्लाह जन्नत नसीब करे आपके अब्बा हजूर को। वैसे तो कोई नेक काम मुझे याद नहीं उनका, लेकिन जाते जाते भला एक अच्छा काम ही कर जाते, आपको भी साथ ही ले जाते। शहाना की फराटे भरती जुबान को रुकता न देखकर दुर्खशा उन्हें घसीट कर अपने कमरे में देगी। हाय और अब्बा, यही दिन देखना बाकी रह गया था। किसी को अपनी तरफ मतवज्जा ना पाकर मासूमा भी सीने पर हाथ मारकर झूठ मूठ का बयान करने लगी। अम्मा इधर आए, आए मेरे साथ, क्यों परेशान होती हैं? शहाना से बात करूंगा मैं, उसको आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, आखिर आप बड़ी हैं घर की। इब्राहिम आलिम उनके गिर्द बाजू हायल करते, उन्हें मस्के लगाते वो वहां से देखे। हाँ, अल्लाह ही मालिक है इनका। सबकतगीन आलिम अपने बड़े और छोटे बेटे को देखकर ठंडी आह भरकर रह गए। उठ गई? वहाज आलम बल्कि इसकी नींद खराब होने के ख्याल से दबे कदमे में दाखिल हुए, लेकिन उन्हें जागता देखकर पूछ बैठे, तो क्या आपको मैं अभी तक नींद में नजर आ रही हूँ? वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, बेगम कभी मीठे बोल भी बोल लिया करो, हर वक्त सड़ती रहती हो। वो शिकवा करके, ये जो आपकी भाभी और अम्मा ने घर को हर वक्त मैदान जंग बनाया होता है, वो आपको नजर नहीं आता? सर में दर्द कर दिया, बंदा अब सुकून से सो भी नहीं सकता। बुड़बड़ाकर वो दोबारा सर तक चादर तान कर लेट की। वहाज आलम बस नफ़ी में सर हिलाकर रह के, मम्मी मेरी, ओहो मम्मी मेरी, आहा मम्मी मेरी शादी कर दो मई जून जुलाई में, मम्मी मेरा दिल नहीं लगता यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में। ही दुपट्टा पकड़े सर के ऊपर घुमाती जोरों शोर से खाती बंगड़ा डाल रही थी। अवीना भी इसका साथ देती ऊट पटांग स्टेप्स कर रही थी, और इसका हाथ अभी हवा में ही था कि मूसा नाश्ता वो अंदर आया। अरे रुक क्यों गए, पिक्चर खत्म हो गई है क्या? अब मंजर कुछ यूं था कि वो तीनों ऊट पटांग स्टेप्स करते जोर शोर से गा रहे थे, और उनके कमरे के पास से गुजरती मासूमा भी शोर की आवाज से रुकी। हैं, ये इनको क्या दौड़ा पड़ा है? उन्होंने दरवाजा जरा सा धकेल कर अंदर झांका। खुद ब खुद उनके हाथ उठे, वो भी दांत निकाल कर भंगड़ा डालने लगी। दफ्तर वो रुकी और चेहरे पर संजीदा तासुरात सजाए, दरवाजा धकेल कर अंदर एंट्री मारी। तीनों को वहीं स्टॉप लग गया। वो तीनों जल्दी से बेड से नीचे उतरे। ये क्या बेहयाई फैलाई हुई है, गजब खुदा का। दादी, गजब गजब नहीं, गजब खुदा का होता है। मूसा उनकी बात काट कर बोला। हीर और अमीना सर नीचे झुकाए फुस फुस करने लगी। हाँ वही, गजब खुदा का, बहनों के साथ नाचते उन्हें गाने सुना रहे हो? कोई शर्म होती है, हया आती, लेकिन तुम छंछूंदरों को क्या पता कि क्या होती है? वो कड़े तेवर दिखाकर बोली तो मूसा की जुबान में खुजली। अस्तगफिरुल्लाह दादी, मैं और गाने, तौबा तौबा, मैं तो उन्हें नाते सुना रहा था। वो कानों को हाथ लगाकर बोला तो मासूमा भी अपनी चप्पल पैर से निकालने के लिए नीचे झुकी। मुझे बहरी समझते हो? पागल हूं मैं? मूसा तेजी से बाहर भागा, लेकिन मासूमा बी ने तान कर अपनी चप्पल उसके कमर पर दे मारी। अरे तुम वक्तों कभी पढ़ भी लिया करो, हर वक्त हाँ हाँ हुई लगाई रखते हो। बड़ी शादी की आग लगी है, तुम्हारे अब्बाओं को बताती हूँ। तोबा, हम तो इतने शर्मीले होते थे, और इनको देखो। वो कानों को हाथ लगाकर कमरे से जाने लगी तो वो दोनों एक दूसरे को इशारा करती उनसे लिपट गई। हाय हमारी अच्छी दादी, अब बाबा से बात ना करना प्लीज, आइंदा हम दिल लगा कर पढ़ेंगे। ये उनके गाल पर बोसा देकर बोली तो उनके माथे के बल कम हुए। दादी इतना गुस्सा क्यों करती हैं आप? इतनी प्यारी स्किन है आपकी, और ऐसी ग्लो कहाँ नजर आती है आजकल की लड़कियों के मुंह पर, जैसे आपके मुंह पर है। गुस्से से आपके खूबसूरत चेहरे की चमक चली जाएगी। अवीना ने कहते हुए हीर को देखकर आंख मारी। मासूमा बी के माथे के बाकी बल भी गायब हो गए। हाँ कहती तो तुम ठीक हो, मेरी जैसी हसीन लड़कियां कहाँ आज के जमाने में। वो एक अदा से मुस्कुराकर घरारा संभालती कमरे से निकल गई। हा 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 हा, वो दोनों हाथ पर हाथ मारकर कहकहा लगा के। इस्लामाबाद के पोश इलाके में वाक़ आलम विला अपनी मिसाराब था। वसी रकबे पे फैला ये महल रात के ज़ीरो के लिए एक दफ़ा रुक कर देखने पर मजबूर कर देता। नेवी ब्लू टाइलों से मुज़य्यन जदीद तर्ज पर तामीर ये महल तो अपनी निसाराब था ही, लेकिन यहाँ के मकीनों की शोहरत भी दूर दूर तक फैली थी। यहाँ के सरबराह सबकतगीन आलम थे, जिन्होंने अपने वालिद शाह जफ़र आलम से झगड़ा मोल लेकर ये महल अपनी सबसे निराली छुई मुई सी जोजा मोहतरमा मासूमा के लिए बनवाया था। ये अलग बात है कि उनके छुई मुई होने का राज शादी के चंद माह बाद ही खुल गया। मासूमा ने सबकतगीन आलम की संगत में जिंदगी गुजारते 3 खूबसूरत बेटों को जन्म दिया। सबकतगीन आलम बेटी की शदीद ख्वाहिश के बावजूद इस रहमत से मारूम रहे। बहरहाल उन्होंने अपने बेटों को जिंदगी की हर आसाइश दी, और साथ ही उनकी अच्छी तरबियत पर खास तवज्जो दी। सबसे बड़े बेटे आबाद आलम, मंजले, इब्राहिम आलम और छोटे वहाज आलम, तीनों ने अपने वालिदैन का सर हमेशा फख्र से बुलंद किया। ग्रेजुएशन के बाद सबकतगीन आलम का बिजनेस संभालिए, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का करते थे। बेटों के बरस रोजगार होने के बाद उन्हें उनकी शादी की फिक्र होने लगी। सबकतगीन आलम ने अपने जानने वाले में तीना को रिश्ता पक्का कर दिया, जिसको बेटों ने बिना चूच रहा के सर तस्लीम खम कर दिया। ऐसी धूमधाम से उनकी शादी हुई कि दुनिया देखती रह गई। आबाद आलम साबर और शुक्रगुजार बीवी दरखुशा को पाकर बहुत मुतमईन थे।
मासूमा को भी उनकी अच्छी सूरत के साथ अच्छी सीरत पर खुदरे इत्मीनान हुआ, लेकिन इस इत्मीनान को तहोबाला मंजिले बेटे इब्राहिम आलम की जोजा शहाना ने किया, जिनकी सास से कभी न बनी। वजह दोनों की कभी न रुकने वाली जुबान थी। यही वजह थी कि शांति वाले घर में अब आए रोज छोटी मोटी जंगें होती रहती थी, जिनकी जद में कब आ जाते थे। छोटे बेटे वहाज आलम की जोजा बल्कीस जरा नकचड़ी साबित हुई। वो ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी, अलबत्ता दुरखुशा के नरम मिजाजी की वजह से उनसे थोड़ी बहुत बन जाती थी। दुरखुशा ने सबसे पहले एक इंतहाई खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, जिसकी कलकारियों से आलम विदा गूंजने लगा। सबकत की नालन ने अपने पोते का नाम बारिस रखा, जो पहला बच्चा होने की वजह से हर किसी की आंख का तारा बन गया। उसकी चंद माह बाद ही बल्कीस ने खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम बाप की पसंद पर रिजा रखा गया। शहाना के यहाँ भी कोई औलाद पैदा नहीं हुई थी। सास के तानों से आजिज आकर वो अपने मेके चली गई, जहाँ कुछ अरसा इलाज के बाद बिलाखिर उन्हें खुशखबरी सुनने को मिली। इब्राहिम आलम बीवी को मिनतों से घर ले आए, जहाँ उन्हें जुठानी दरखुशा के दोबारा हमल का पता चला और एक ही वक्त में शहाना ने बेटी को जन्म दिया, जबकि दरखुशा के हाथ जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई। यूं तीनों बच्चे हम उम्र थे। अबाद आलम ने बेटी का नाम अमीना रखा, जिसका मतलब था नेक और मासूम, जबकि मासूमा की ख्वाहिश पर बेटे का नाम मूसा रखा। शहाना बेटी की पैदाइश पर भी फूले नहीं समाती थी। बड़ी बड़ी आंखों से सबको पटर पटर देखते अपनी बेटी का नाम उन्होंने हीर रखा। वहाज आलम की बेटी रिजा को नन्हे मेहमान की आमद कुछ पसंद नहीं आई, जबकि हर किसी से अलग थलग अपनी जात में गुम रहने वाला बारिश छोटे छोटे बहन भाई को पाकर बहुत खुश हुआ। उसने हीर को पकड़कर प्यार करना चाहा, लेकिन उसके हाथों में आते ही वो रोने लगी। यूं जब भी वो उसके सामने जाता वो रोने लगती। एक बार तो उसने वारिस के चेहरे पर नाखून मार दिया, जिसके बाद वो उससे चिढ़ने लगा। 2 साल बाद बल्कि इसके यहाँ रबिया की पैदाइश हुई, जो आम बच्चों की निस्बत हद से ज्यादा सेहतमंद थी। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि बल्कीस बेगम ने लड्डू की पैदाइश के बाद ही दम लिया। यूं इस घर में मजीद बच्चों की पैदाइश पर फुल स्टॉप लग गया। यूं जिंदगी के साल गुजरते रहे। बारिश ने मास्टर्स करने के बाद उसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर का ओहदा संभाला। हीर, मूसा और आमीना उसी यूनिवर्सिटी से इकट्ठे ग्रेजुएशन कर रहे थे। रिजो को पढ़ाई से कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इंटर करके उसने पढ़ाई को खैर बात कह दिया। रबिया भी इंटर के पहले साल में थी। वो अपने मोटापे को कम करने की कोशिश में हलकान थी। हीर गैंग, जिसमें मूसा, अबीना और हीर शामिल थे, हर वक्त रिजा और रबिया से लड़ने को तैयार रहते। उनकी आपस में कभी नहीं बनी थी। वजह रिजा और रबिया की नकचड़ी तरबियत थी, जो उनकी माँ पर गई थी। हीर, उठ जाओ, यूनी के लिए लेट हो जाओगी। हीर के बराबर लेटी अवीना ने जरा सा उठकर बैठी आवाज में से उठाने की कोशिश की, जो गधे घोड़े सब बेचकर दुनिया जहां से बेखबर मुंह खोले सो रही थी। अपने दुखते सर को दबाकर उठ बैठी। बुखार से अंग अंग दुख रहा था। हीर को टस से मस न होता देखो वो झंझला गई। साइड टेबल पर धड़ा जग उठाकर उसने पूरे का पूरा हीर पर उल्टा दिया। हाय अम्मा, सैलाब आ गया, बचाओ। वो हाथ पांव मारती जमीन से बोझिल आंखों को बार बार झपकने लगी। उठ भी जा मनहूस औरत, इतनी दफा तुम्हें आवाजें देकर गई हैं अम्मी। बाहर जाकर अपनी तशरीफ का टोकरा रखो, नहीं तो बाहर में जाओ। जले कटे अंदाज में कहकर वो बेड पर दराज होती, दुबती आंखें मौन की। उसके जले कटे अंदाज पर हीर ने नासमझी से उसे देखा और कसलमंदी से उठकर फ्रेश होने चली गई। अस्सलाम वालेकुम ताईजान, सुबह बखैर। उजरत में किचन में दाखिल होकर उसने सलाम किया, लेकिन बारिश को वहां मौजूद पाकर उसका बखैर मुंह में ही रह गया। उसके चेहरे के एहसास ऐसे हो गए जैसे किसी ने कड़वी दवा उसके मुंह में डाल दी हो। बारिश उसके तासरात को बल्कि उसे ही सिरे से नजरअंदाज पर तसल्ली से नाश्ता करने लगा। उठ की मेरी बेटी, चलो शाबाश, जल्दी करो, नाश्ता कर लो, वक्त कम है। अगर शहाना यहाँ आ गई ना तो सुबह सुबह तुम्हारी सुथरी हो जानी है। हीर जल्दी से कुर्सी घसीट कर बैठी। उसने पराठे पर आमलेट फैलाकर उसे रोल कर लिया और केचप की प्याली करीब खिसकाकर पराठा उससे लगाकर खाने लगी। बारिश ने उसकी हरकत देखकर आंखें घुमाई। ताईजान, अवीना क्यों नहीं जा रही आज? मुंह को तेज से चिल्लाती हुई इस्तिफसार करने लगी। उसको बुखार है इसलिए नहीं जा रही, और तुम आज बारिश के साथ चले जाना। गरम भाप उड़ाती चाय को प्याले में डालकर वो मसरूफ से अंदाज में बोली तो हई उछल ही पड़ी। क्यों? क्यों मैं के जाऊं इस खड़ूस के साथ? उसके साथ जाने के सुनकर तड़प ही तो उठी थी। बारिश ने तुम नजरों से घुरा। बुरी बात है बेटा। हीर, बड़ा है वो तुमसे, और आज ड्राइवर छुट्टी पर है, इसलिए बारिश के साथ जाओगी तुम। उसे डपट कर आखिर में उसे ड्राइवर की ना आने की वजह बताने लगी। हीर अपना सा मुंह लेकर रह गई। मैं बाहर 5 मिनट इंतजार करूंगा, बस जाना हुआ तो आ जाना। तीखी नजरों से उसे देखते वो गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। हीर जल्दी से कमरे में दौड़ी। अपना बैग कंधे पर डालकर उसने आईने के सामने रुकते एक तफसीली नजर खुद पर डाली। काली शलवार कमीज के साथ काले ही जोकर, लंबे स्याह बालों को उसने आज परांदे की बजाय बलदार चोटी में गूंथ दिया था। माथे पर गिरते बेबी कट बालों को सीधा करते उसके चश्मे चश्मे साफ करके दोबारा लगाया और स्याह दुपट्टा गले में डालकर वो जिल्द में बाहर निकल गई।
गाड़ी में इसके साथ सफर करते से रह रहकर बारिश पर ताव आ रहा था। यूनिवर्सिटी पहुंचकर फौरन से पहले गाड़ी से उतरी। ऊट पटांग फैशन के इस दौर में वो सब लड़कियों से मुनफरिद लगती थी। ब्लैक ड्रेस शर्ट और ब्लैक ही पैंट में शर्ट के बाजू कोनिया तक मोड़े वो मोबाइल पर वक्त देखते बेनियाजी से चलते। बारिश के हमरा चलती वो कई लड़कियों की निगाहों का मरकज बन गई। बाज आंखों में रश्क जबकि बाज आंखों में हसरत था। अहम अहम लगता मैचिंग की है लोगों ने आज। अपने पीछे किसी तालिबे इल्म की आवाज बढ़ने पर वो सूरज से पीछे मुड़ा, लेकिन इतने हजूम में इस आवाज को पहचानना नामुमकिन था। हीर की तेवड़ी चढ़ी। फौरन कमीज के बाजू मरोड़ती दाएं बाएं देखने लगी। अबे कौन है जो सुबह सुबह हीर से अपना मुंह तड़वाना चाहता है? अभी कद्दू की औलाद दम है तो सामने आना। इससे पहले वो मजीद गोहर अफशानी करती बारिश से बाजू से पकड़ के हजूम से परे ले आया। मसला क्या है तुम्हारे साथ? हाँ, जहाँ देखो गुंडागर्दी शुरू कर देती हो। इतनी चीप लैंग्वेज सीखी कहाँ से है तुमने? कोई शर्म है तुमने कि नहीं? उसका बस नहीं चल रहा था कि उसे नजरों से ही चुभा जाता। आखिर उसकी एक रेपुटेशन है यहाँ जिसका बेड़ा गर्क करने पर वो तुली हुई थी। हीर ने दुख से उसे देखा तो बारिश के तासुरात नरम पड़े। वो उंगलियां चुटकाकर उसके करीब होती से नीचे झुकने का इशारा करके वो गहरा सांस खारिज करता झुका। नहीं, उसके कान में चीखती वो उसे मुंह चढ़ाकर भागी। बारिश कान पर हाथ रखे भौंचक्का रह गया। क्या ड्रामा है ये लड़की से तो मैं। वो शदीद गुस्सा जब्त करके अपने ऑफिस की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद ग्राउंड फ्लोर की दीवार के पीछे छुपे खड़े हीर के क्लासमेट्स बाहर निकल आए। फिर उनके हाथ पर हाथ मारकर हंस पड़ी। हीर यार, तुम्हें डर नहीं लगता प्रोफेसर से? पूरी यूनी उनके गुस्से से डरती है, उसकी एक क्लासमेट ने कहा तो वो एक अंदाज से मुस्कुराई। वो हीर ही क्या जो किसी से डर जाए? मिस हीर, प्रोफेसर शमसुद्दीन की दहाड़ पर उसने दहल के पीछे देखा जो हाथ में एक पोस्टर पकड़े खड़े थे जिसमें उनकी तस्वीर को बड़े मज़ाहिया अंदाज में बनाकर नीचे उनका नाम लिखा हुआ था। पूरी यूनी जानती थी कि ऐसी हरकत हीर दी ग्रेड के अलावा कोई नहीं कर सकता। शर्म आनी चाहिए आपको। ऑफिस आए मेरे साथ, आज तो आपके घर कॉल करके आपकी हरकतों का जरूर बताऊंगा। गैज़ो गजब से उसे देखते हुए दहाड़े तो हीर ने रोनी सूरत बनाई। मरील कदमों से उनके पीछे चलती वो इर्द गिर्द मौजूद तालिबे इल्म को देखती ना नजर आने वाले आंसू पूछने लगी। हाय और रब्बा, कित्थे फंस गई हीर। मैं आई कम इन सर? हीर जो ऑफिस में मुंह बसोड़ कर खड़ी थी, इस आवाज पर आने वाले को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। आइए आइए, आप ही का इंतजार था। आप हीर के भाई हैं? प्रोफेसर शमसुद्दीन हीर को एक नजर देखकर बोले। जी जी, मैं हीर का भाई हूँ। आने वाले ने नामहसूस अंदाज में दाढ़ी पर हाथ रखा और मुतमईन होकर कुर्सी पर बैठ गया। माजरत चाहता हूँ आपको जहमत देनी पड़ी, लेकिन आपकी बहन की हरकतें ही कुछ ऐसी हैं, सारी यूनिवर्सिटी को परेशान करके रखा है। ये देखें आज क्या हरकत की है इस नालायक ने। उन्होंने वो पोस्टर नुवाज के सामने मेज पर रखा था। उसने हंसी छुपाने को मुंह पर हाथ रख लिया। अहम, बहुत गलत हरकत की है हीर ने। उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए। मैं घर जाकर अपने वालिदैन को भी मुत्तला करता हूँ। आप बेफिक्र रहें, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगी। उसकी बात सुनकर प्रोफेसर शमसुद्दीन खुश हो गए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप तो खासी समझदार हैं। उनसे मुसाफा करके वो हीर को इशारा करके बाहर निकल के हीर भी बैग उठाकर उसके पीछे भागी। ग्राउंड में आकर उसने दम लिया जहां वो नौजवान अपनी नकली दाढ़ी मूंछ उतार रहा था। हा 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 हा, दोनों की कब से रुकी हंसी सारे बंद तोड़कर जो छूटी तो पास मौजूद तालिब इल्म को दहला के। मूसा यार, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो तुम। थैंक यू बड़ी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? वो धप से घास पर उसके बराबर बैठती बैग से लेस का पैकेट निकालकर लेस खाने लगी। वो की सुलह भी मार लो। उसके हाथ से पैकेट झपट कर एक साथ सारी लेस मुंह में डाल गया। हाँ नादीदे, सारी लेस खा के हीर ने उठकर उसके भरे हुए मुंह पर एक चमाट रसीद की। अवीना की दोस्त से पता चला कि हीर बीबी बुरी तरह फंस गई है। फिर क्या था, मैंने दिमाग लड़ाया और प्रोफेसर को काम के बहाने बुलाकर उनके ऑफिस से मोबाइल पकड़ा और घर वालों का नंबर डिलीट करके अपना नंबर सेव कर दिया। अब लंबे अरसे के लिए मुतमिन रहो तुम। वो दोनों हाथ सर के पीछे टकाता मुस्कुरा कर घोया उतरी हीर ने खुशी से एक झांपड़ी गर्दन पर मारा। वाह यार, जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया तुमने। मूसा ने सुलग कर उसे देखा। ये थप्पड़ किस खुशी में मारा तुमने? चल यार चलो उठो, अब क्या सारा दिन यहीं पड़े रहने का इरादा है? तुम्हारे क्रूस भाई का लेक्चर अगर ना अटेंड किया तो उन्होंने कच्चा ही चबा जाना है आज। बैग कंधे पर डालकर वो दोनों दौड़ते हुए ग्राउंड से निकल के। अतवार के दिन सुबह का वक्त था। लीजा मुंह पर मास्क लगाए कमरे से निकली, हाथ में पानी की बोतल थामे उसने किचन का रुख किया। अभी वो किचन के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि बारिश लॉन की तरफ जाता नजर आया। वो जल्दी से पानी की बोतल किचन में रखती मुंह से मास्क उतार कर उसके पीछे गई। बारिश जो पीली सी टी शर्ट ट्राउजर में मलबूस वर्जिश पर मसरूफ था उसे अपनी तरफ आता देखकर सुलग गया। उसे एक नजर देखकर उसे काम आले बेनियाजी से नजरअंदाज करके उसकी एक नजर पर उसका दिल बिल्लियों उछड़ने लगा।
ہاں اس کی بازو کی ابری ہوئی نسوں پر نظر ٹکا کر وہ کھویا ہو کیسے ہو؟ بارش نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ مجھے اتنا اگنور کیوں کرتے ہو؟ میں بھی کزن ہوں تمہاری، اس ہیر پہ تو ساتھ لیے پھرتے ہو۔ وہ غصے سے بولی تو بارش رک کر اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ آتے ہی وہ تیز سے اٹھا۔ اپنی بکواس بند کرو تم، جو تمہارے ارادے ہیں خود سمجھتا ہوں میں، اور ہیر کو کچھ کہنے سے پہلے اپنے آپ پر غور کر لو، پہلے وہ تم جیسی نہیں ہے۔ اسے کونی سے پکڑ کر جھٹکتے اس کے منہ پر دھاڑا۔ ارے ارے کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اوینا نے ہیر کے ساتھ انٹری ماری تو وہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نا دور آ کرو، میرے بھائی سے تمہیں پہلے بھی کہا تھا میں نے۔ اوینا غصے سے بولی۔ ریجا اپنی اتنی بے عزتی پر پیر پٹک کر وہاں سے چلے گی۔ بھائی ایک جھامپڑ لگانا تھا اس چھپکلی کو، نہ زہر لگتی ہے مجھے یہ۔ اوینا کو بارش سے ہم کلام دیکھ کر ہیر دور ہٹ کر لان میں لگے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ لگتا تو ہے آئندہ بات رہے گی۔ بارش سے ایک نظر ارد گرد سے لاپرواہ ہیر پر ڈال کر بولا تو اوینا نے اس کی وہ نظر نوٹ کی۔ تو اچھی کون لگتی ہے پھر تمہیں؟ وہ یوں ہی بات کرنے کی غرض سے بولا۔ وہ اس کے ساتھ وہ کرتی اسے دیکھنے لگی۔ اچانک شرارت کی آنکھیں چمکی۔ ہیر اچھی لگتی ہے مجھے، پھر کیا خیال ہے؟ بارش نے اسے آنکھیں دکھائی۔ بہت شرارتی ہوگی، چلو اندر اور اسے بھی ساتھ لے جاؤ۔ داخلی دروازے سے اپنی ایک دوست کو داخل ہوتے دیکھ کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ امینا نفی میں سر ہلاتی ہیر کی چھٹیاں کھینچتی اندر بھاگی۔ رک وینا کی بچی، ابھی بتاتی تجھے میں۔ وہ بھی آندھی طوفان بنی اس کے پیچھے ہی لان سے نکل گئی۔ عالم بلا کے بھرے ہوئے شہر میں زمین پر بچھی دریوں پر ان گنت کپڑوں کا ڈھیر لگا تھا۔ خوشگوار موسم اپنی جون بدلتا گرمی کو خوش آمدید کہنے لگا تھا۔ موسم کے تیور بدلنے لگے تو گھر کی خواتین کو گرمیوں کے نئے جوڑے خریدنے کا خیال آیا، لیکن مصروفیت سے فراغت پا کر بازار کے چکر لگانا آسان کہا تھا تو سبقت کی عالم نے ان کی مشکل آسان کرتے ایک بوتیک سے رابطہ کر کے گھر میں ہی کپڑوں کا ڈھیر منگوا لیا۔ اب بھی صحن لنڈا بازار کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہیر، اوینا، ریجا، درخشاں، معصومہ، ابھی بلقیس کپڑوں کے ڈھیر کے گرد جمکھٹا لگائے بیٹھے تھے۔ بلقیس نے سرمئی رنگ کا لان کا خوبصورت جوڑا اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر درخشاں کی طرف دیکھنے لگی۔ بھابھی کیسا لگ رہا ہے یہ رنگ مجھ پر؟ درخشاں ہاتھ میں پکڑے شفون کے دوپٹے کو ایک طرف رکھتی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اچھا لگ رہا ہے، اس کے ساتھ دوپٹہ دوسرے شیڈ کا رکھو، انہوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ بلقیس مطمئن ہوتی دوپٹہ میچ کرنے لگی۔ آہا زبردست، موسا بس یہ دوپٹہ میری طرف سے رکھ لو۔ ہی نے موسا کو ان میں گھسیٹ کر بیٹھتے دیکھا تو طنز کیے بغیر نہ رہ سکی۔ شٹ اپ، موسا اصل یہ بغیر بولا۔ ماشاءاللہ یہاں تو پورا لنڈا بازار لگا ہوا ہے۔ شہانہ لکڑی کا چمچہ ہاتھوں میں پکڑے کچن سے نمودار ہوئی۔ نہیں رجو، تینوں اور کوئی کام نہیں، ہر وقت بوتھے تے پتہ نہیں کیڑے مات لگا لا کے پھردی رہنی ہے۔ شہانہ نے ریجا کو اپنا فیس ماسک ٹھیک کرتے دیکھ کر لتاڑا۔ بالکل صحیح کہا چاچی، تسی ہمیشہ صحیح کہندے ہو۔ موسا بدیسی کی نمائش کرتے ہوئے بولا تو شہانہ آنکھیں چھوٹے کی اس کی طرح مڑی۔ وہ تو بیبیوں میں کیا کر رہا ہے؟ چال پاجی یہاں سے۔ اوینا اور ہیر کی ہنسی نکل گئی۔ شہانہ تم بھی کوئی جوڑا دیکھ لو۔ درخشاں کے کہنے پر وہ سرسری سی کپڑوں کا جائزہ لینے لگی۔ اتنے میں بارش آیا اور صحن سے گزر کر میدان خانے کی طرف جانے لگا۔ کچھ سوچ کر وہ ایک پل کے لیے رکا۔ چاچی چائے بھجوا دے، بہت طلب ہو رہی، میں میدان خانے کی طرف جا رہا۔ ہائے میرا پتر، چاچی صدقے تو جا، میں بھی بھجواتی ہوں۔ شہانہ کے پیار بھرے انداز میں کہنے پر وہ مسکرا کر سر ہلاتا صحن سے چلا گیا۔ ہیر پتر جا کچن میں چائے رکھیے، گرم کر کے دیا سب کو۔ سب مرد وہیں بیٹھے ہیں، اسی حساب پہ لے جانا، ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی لے جانا۔ ہیر نے بیداری سے سر جھٹکا۔ جا وینا پتر، بہن کی مدد کر دے۔ ان دونوں کو حکم دے کر انہوں نے معصومہ بی کو دیکھا جو سکھ شوق قمیض کے ساتھ توفیق گرارہ پسند کر کے بیٹھی تھی۔ شہانہ سر نیچے جھکا کر پھسفس کرنے لگی۔ درخشاں نے ایک نظر ان کو دیکھ کر معصومہ بی کی طرف دیکھا جن کی تیوری چڑھ گئی۔ کیا میں نے کیا کہہ دیا اب جو مجھے معصوم کو کھور رہی ہیں آپ؟ استغفار، خود کو معصوم کہہ کر معصوموں کی توہین نہ کر۔ معصومہ بھی دوپٹہ کان کے پیچھے اڑس کر بولی۔ جائے بیبے، میں نے آپ سے بحث نہیں کرنی، ویلی نہیں ہوں میں اس وقت، ورنہ آپ کی شان میں قصیدے ضرور پڑتی۔ جس کام کے لیے آئی تھی وہ تو بھول ہی گئی میں۔ شنو بھابھی، کھانے میں کڑاہی گوشت، مٹر پلاؤ، آلو کے کباب اور میٹھے میں کھیر بنا دی ہے میں نے۔ ہاں صبح سے کام میں لگی ہوں، بیڑا گرک ہو اس کا، جتنی ہانڈیاں ایجاد کی ہیں، دن رات کھانے بنا کر میری تو زندگی ہانڈی ہو گئی ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کچھ اور تو نہیں بنانا؟ شہانہ اپنی فراٹے بھرتی زبان کو روک کر مدعے پر آئی۔ نہیں بس کافی ہے، معصومہ بھی نے درخشاں کی بات کاٹ دی۔ نہیں تو اپنی زبان بھی جا کر بھون لے آگ پر، ہر وقت چلتی رہتی ہے، ذرا آرام ملے ہمیں بھی، ہر وقت چک چک لگائی ہوتی ہے۔ اللہ معاف کرے، ایسی لمبی زبان کسی کی نہ دیکھی نہ سنی۔ شہانہ نے ناک کھلا کر انہیں دیکھا۔ نہ بیبے، اپنی زبان کیوں میں آپ کا کلیجہ نہ بھون دوں؟ لیکن ایک اور بات بھی ہے، آپ کا کلیجہ کھا کر بدہضمی ہو جانی ہے۔
अपनी जुबान के जौहर दिखाकर उनका जवाब सुने बगैर वो तन फन करते किचन में चली गई। पीछे दुर्खशा ने अपना सर पकड़ लिया। मासूमा भी बुड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। आराम से बेटा। वो चाय की ट्रे थामे मैदान खाने में गई तो पैर मुड़ने से जरा सा लड़खड़ाए। जी बाबा। इब्राहिम साहब के कहने पर वो संभल कर आगे बढ़ी। उसके पीछे ही अमीना स्नैक्स की ट्रे थामे हुई अंदर आई थी। हीर ने एहतियात से सबको चाय पेश की। अमीना ने स्नैक्स मेज पर रखे और वो दोनों जाने के लिए पलट गई। गालबन यहाँ सब कारोबारी गुफ्तगू कर रहे थे लेकिन उन्हें देखकर रुक गए थे। असाइनमेंट्स बना रही है तुम दोनों ने? बारिश की आवाज पर दोनों के कदमों को ब्रेक लगे। वो कोफत से पलटी। नहीं, अभी नहीं बनाई। सबकी नजर खुद पर मरकूज पाकर अमीना ने हल्की आवाज में कहा, तो कब बनानी है? तुम दोनों ने टेस्ट भी नहीं प्रिपेयर किया होगा। याद रखना, इस दफा कोई रायत नहीं मिलेगी। बुक्स लेकर मेरे कमरे में पहुंचो तुम दोनों। मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। उसके सख्त लहजे पर दोनों रूहानसी होती जल्दी से बाहर निकली। हाय ओ रब्बा, कितने फंस गई हीर। हीर ने दहाई देते अपना पसंदीदा डायलॉग दोहराया था। अमीना ने उसकी कमर पर थप्पड़ मारा। इस दफा तुम अकेली नहीं, मैं भी फंस गई हूँ। बुरे बुरे मुंह बना दी दोनों कमरे से मतलूबा चीज लेकर बारिश के कमरे की तरफ बढ़ी। यार कितना साफ सुथरा कमरा है तुम्हारे खड़ूस भाई का। वैसे हजार मुझे जहर लगते हो लेकिन एक भी बात माननी पड़ेगी, बंदे का दोग बहुत आला है। हीर कमरे में फैली मध्यम खुशबू में गहरा सांस भरकर बोली। बेड पर नफासत से बिछी सफेद चादर पर अपनी किताबें रखती वो बैठकर कमरे का जायजा लेने लगी। अवीना ने जमाई रोककर बेजार नजर से असाइनमेंट पेपर निकाले। बारिश को कमरे में दाखिल होता देखकर दोनों अलर्ट होकर बैठ गई। उन्हें अपने बेड पर बैठा देखकर उसने भवें से कही, उधर जाकर बैठो। वो संजीदगी से दूर पड़े टू सीटर सोफे की तरफ इशारा कर गया। वो दोनों तनपन करती उठी और सोफे पर जाकर बैठ गई। बारिश के हद से ज्यादा संजीदा मिजाज को देखकर फिलहाल उन्होंने मुंह बंद रखना मुनासिब समझा। बारिश उन्हें एक नजर देखकर बेड पर नींद दराज होता मोबाइल पर मसरूफ हो गया। मेरी शक्ल नहीं देखनी, टेस्ट याद करना है। उन्हें मुसलसल अपने आप को तख्ता पाकर वह अचानक इनकी तरफ मुंह करके बोला तो उन्होंने गड़बड़ा कर किताब थामी और जोरों शोर से रट्टे लगाने लगी। बारिश ने कुफ्फत से उन्हें देखा। उसका ध्यान हटते देखकर हीर ने आंखें घुमाई। खड़ूस कहीं का। बुड़बड़ा कर वो पैर हिलाती किताब के अलावा कमरे की हर चीज का हिर्स करने लगी। अमीना को टेस्ट याद करता देखकर उसकी तेवरी चढ़ी। अचानक उसकी आंखें शरारत से चमकी। उसके करीब खिसकर उसने उसकी कमर में गुदगुदी की तो अमीना की हंसी निकल गई। हा हा हा। बारिश के गुस्से से घूरने पर वो किताब मुंह के आगे करते हिल हिल कर रट्टे मारने लगी। यार मुझे नहीं याद हो रहा, क्या करूं? हिल ने उसके कान के करीब झुकते हुए सरगोशी की। चुप करके याद करने की कोशिश करो, नहीं तो भाई का पता है ना। वो उसे वार्न करते हुए बोली। हीर ने पीछे हटकर साथ लाए बैग से चोरी छुपे एक पाइप निकाला और उसमें नन्हा सा दाना दाना डालकर बारिश का निशाना लिया। उसके फूंक मारने की दी थी, वो दाना सीधा बारिश के माथे पर जाकर लगा। दफा हो जा मेरे कमरे से। वो सुर्ख चेहरे से दहाड़ा। वो जो कब से इसकी हरकतों को नजरअंदाज कर रहा था, हीर की इस हरकत पर खुद पर सब्र न कर सका। वो दोनों से शदीद गुस्से में देखकर सर पर पैर रख कर भागी। हड़बड़ी में वो अपनी चीजें भी यहीं छोड़ गई थी। बारिश गुस्से से दरवाजे को देखकर रह गया। कहाँ पागलों में फंस गया हूं मैं। वो सख्त बेजारी से बड़बड़ाया। ओहो, दुश्मनों के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। मूसा ने छत पर कदम रखा तो रबिया उसे देखकर रुख ही फेर गई। जब से मूसा ने उसे मोटी बैंस खाना शुरू किया था तब से उसने ठान लिया था अब सबको पतली होकर दिखाएगी। अब पहले की निस्बत वो थोड़ी दुबली लगने लगी थी। ओ कद्दू इधर मर। हीर ने पतंग हाथ में पकड़कर उसे इशारा किया तो वो तनफर करता उसकी तरफ बढ़ा। भोंक। हीर ने हाथ जूते पर रखा ही था कि वो हाथ उठाता पीछे हटकर खड़ा हो गया। अच्छा अच्छा, बोल क्या है? मैंने मैंने ना पतंग चढ़ाकर वो पतंग काटनी है, वो नीली पतंग। उसने आसमान पर उड़ती नीली बड़ी सी पतंग की तरफ इशारा किया जिसकी डोर उनके पड़ोस में मौजूद अख्तर साहब के पोते के हाथ में थी। ना कर क्यों पंगा ले रही है? इसका दादा आ गया ना, पैं पैं करने तो पहले उनके मुंह से नकली जबड़ा निकलकर हमारे फर्श को गदला करेगा। फिर वो जबड़ा वापस मुंह में डालकर घर वालों के सामने जो जलील करेगा ना, हमारी अगली पिछली नस्लें याद रखेंगी। मूसा ने खौफनाक मंजर पेश किया तो हीर ने बगैर असर लिए पतंग उसके हाथ में पकड़ा दी। मुझे उससे एक चीज का बदला लेना है। वो आंखें मटका कर बोले। ये लो, मैं जरा ऊपर जाकर खड़ी होती है, जब मैं इशारा करूँ तो पतंग ऊपर ऊपर उछालना। वो मरता क्या ना करता कि मिस्ताक पतंग पकड़ कर खड़ा हो गया। हीर के इशारे पर उसने पतंग उछाल दी। याहू। कुछ ही देर में पतंग आसमान से बातें करने लगी। हवा से उड़ते बालों के खास से चेहरे से पीछे हटाते ही वो पतंग की डोर थामती नीली पतंग के करीब लाने लगी। मुकाबल चौंक कर सीधा हुआ। आंखें सुकेर कर उसने पीली पतंग को देखकर इसकी पतंग के रास्ते में आ रही थी। इससे के पहले कि पीली पतंग उसकी पतंग को काटते उसने कमाले होशियारी से पीली पतंग की डोर काट दी। हीर ने सदमे से अपनी पतंग को गिरते देखा।
اس نے بازو کونیوں تک چڑھا کر دوپٹہ کمر پر کس کر باندھا اور سامنے آتے پراندے کو غصے سے پیچھے پھینکتی پڑوسیوں کے گھر کے ساتھ جڑی دیوار پر چڑھ گئی۔ ہیر واپس آؤ، نیچے اترو، پاگل ہوگی ہو۔ موسیٰ کی آوازوں کو نظر انداز کر کے وہ دروازے سے کود گئی۔ دب سے نیچے زمین پر قدم رکھ کر وہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ آواز پر اس لڑکے نے مڑ کر دیکھا تو ہیر کو دیکھ کر اسے کھانپ سونگ گیا۔ ہیر نے اس کے ہاتھ میں اپنی پتنگ دیکھی تو خطرناک تیورے سے اس کی طرف بڑھی۔ وہ دبلا پتلا سا لڑکا اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر بھاگا، کیونکہ ہیر کی شہرت دور دور تک پھیلی تھی۔ ابے رک، پھٹے ہوئے بینگن، کسی عاشق کی ناکام شاعری! وہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے دوڑی، پیچھے سے اس کی شرٹ کو ہاتھ میں دبوچ کر ایک تھپڑ اس کی گردن پر مارا۔ آئی! لڑکا گردن پر ہاتھ رکھ کر چلایا۔ مزید مار سے بچنے کے لیے پوری قوت لگا کر بھاگ گیا۔ ہیر حیرت سے اپنے ہاتھ میں شرٹ کے ٹکڑے دیکھتی رہ گئی جو پھٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ دیوار پر چڑھ کر سارا منظر دیکھتے موسیٰ کا قہقہہ ابل پڑا۔ جیو شیرنی! وہ بے حد محظوظ ہوا تھا۔ ہیر نے ہنس کے دونوں پتنگیں اٹھائی اور موسیٰ کو پکڑتی دیوار پھیلان کر اپنی چھت پر آ گئی۔ لا 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 لا، زندگی سوار دوں، ایک نئی بہار دوں، دنیا ہی بدل دوں، میں تو سارا پیارا سا چمتکار ہوں، آسمان کو چھو لوں، تتلی بن کر اڑوں۔ امینا اپنی ہی دن میں ڈوری مون کا کارٹون کا گانا لہر لہر کر گاتی بورچی خانے سے منسلک صحن میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی کہ اچانک پیچھے مڑنے پر ایک لمبے چوڑے وجود کو کھڑا دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ شہریاری جو کب سے بیرونی دروازے سے داخل ہو کر بارش کو کال پر پول کر رہا تھا، لیکن جواب موصول نہ ہونے پر کچھ سوچ کر اندر آ گیا۔ سامنے امینا کو لہر لہر کر گاتا دیکھ کر اسے سمجھ نہ آئی کہ اسے کیسے مخاطب کرے۔ وہ بلیک پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر وہی ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا اس کا جائزہ لینے لگا، جو کالے لمبے کرتے کے ساتھ نیلی جینز پہنے ہوئے، دوپٹہ ہمیشہ کی طرح گلے کی گرد رول کر کے لپٹا ہوا تھا۔ اسے اپنی طرف متوجہ نہ پا کر وہ گلا کھنکار کر سیدھا ہوا۔ امینا اپنے سامنے ایک خوبرو مرد کو دیکھ کر اپنی حرکت یاد کرتے شرمندہ سی ہوگی، لیکن پھر اس نے خود کو اندر ہی اندر ڈپٹا، بڑا مجھے کیا ضرورت ہے شرمندہ ہونے کی؟ جی فرمائیے، کون ہے آپ جو چوروں کی طرح گھر میں گھسے جا رہے ہیں؟ وہ کمر پر ہاتھ ٹکاتی لڑاکا عورتوں کے سے انداز سے بولی۔ انٹرسٹنگ! وہ اس کے انداز کو دیکھ کر ابرو اچھا گیا۔ اس بات یہ کہ میں بارش کا دوست ہوں، کب سے باہر کھڑا سے کال کر رہا تھا لیکن وہ اٹینڈ نہیں کر رہا تھا، سو مجھے لگا گھر میں چل کر پتا کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے ضروری کام ہے اس سے، اور چوروں کی طرح گھس کر نہیں آیا، باہر آپ کی گارڈ سے پوچھ کر آیا ہوں۔ اس کی لمبی چوڑی وضاحت پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے، میں بھائی کو بھیجتی ہوں۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تو اسے پکار بیٹھا۔ مس، آپ کا جو بھی نام ہے، ڈرائنگ روم ہے کدھر یہ تو بتا دے۔ وہ اسے زچ ہوتا دیکھ کر محظوظ ہوتا یوں ہی داڑھی کھچانے لگا۔ آئے میرے ساتھ، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولتی سے ساتھ لیے چلنے لگی۔ ویسے کافی مہمان نواز ہیں آپ۔ وہ اس پر طنز کر گیا تو امینا کڑے تیوروں سے اس کی جانب پلٹی۔ میرے منہ نہ لگے آپ، نہیں تو۔ اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ گیا۔ میں لگا ہی کب ہوں آپ کے منہ؟ اس کی دو معنی بات پر امینا کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ اتنا بے باک انسان سے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ سامنے ڈرائنگ روم ہے، وہاں چلے جائیں یا جہنم میں آپ کی مرضی ہے۔ غصے سے سرخ چہری اور تن پن کرتی کچن کی طرف سے جانے لگی۔ سمجھتا کیا خود کو بدتمیز انسان، کمینہ! میں بھائی کو بھی نہیں بتا سکتی۔ ہاتھ پر مکہ مارتی وہ کچن میں داخل ہوئی جہاں ہیر بے سرے راگ لگاتی برتن دھو رہی تھی۔ پانڈے پانڈے ہو گیا دل، پانڈے پانڈے ہو گیا۔ وہ قوالی کے بول کا بیڑا گرک کرتی مسلسل گردان کرتی برتن پٹک پٹک کر رکھ رہی تھی۔ نہیں ہیر کی بچی! امینا اپنے ہی غصے میں چلاتی اس کے پاس رکھتی اس کی کمر پر تھپڑ مار کی۔ ہائے ربا، اس ظالم دنیا تے کتنے پھنس گئی ہیر! وہ کھڑی کھڑی سینک کے کنارے سائڈ ٹکا کر مغموم انداز میں بولی۔ ڈرامے باز عورت، بچ کر دے۔ امینا اس کی نوٹنکی دیکھ کر سلگ گئی۔ اچھا بول، کیا ہوا تیرے منہ لال ٹمیٹو کی ہو رہا ہے؟ وہ اپنی جون میں واپس آتی دھلے برتن ترتیب سے ریک میں رکھتی استفسار کرنے لگی۔ یار میں نا باہر چکر لگا رہی تو ایک بندر بدتمیز شودا، وہ دیدیاں نچا کر شروع سے آخر تک سب بتانے لگی۔ ہیر کی آنکھیں ابل پڑی۔ توبہ توبہ، ایسا کہا اس نے؟ ہاں نا، امینا بھمی سکیر کو بولی۔ ویسے کیا بہت پیارا ہے وہ؟ ہیر نے آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھا۔ ہاں ہے تو بہت پیارا، اہم اہم، اس کا خوبصورت چہرہ آنکھوں کے سامنے آنے پر وہ بے ساختہ کہٹ رہی، لیکن ہیر کے گلا کھنکارنے پر اس کی زبان کو بریک لگا۔ کسی کا نام ہی پوچھ لیتی۔ وہ شرارت سے کھوئی، ہیر مجھ سے جام پڑ کھائے گی تو کیا فضول باتیں کر رہی ہے؟ وہ سر پٹا کر بولی۔ کیا یہی پیار ہے؟ کیا یہی پیار ہے؟ ہاں یہی پیار ہے۔ ہیر کے شرارت سے گنگنانے کر وہ پیر پٹک کر کچن سے ہی نکل گئی۔ معصومہ بھی صحن میں رکھے تخکوش پر بیٹھی پیسے گن رہی تھی۔ انہوں نے شہادت کی انگلی پر تھوک لگائی اور آرام سے پیسے گننے لگی۔ مطلوبہ رقم علیحدہ کر کے انہوں نے باقی پیسے دوپٹے کے کونے سے باندھ کے گرہ لگا لی۔ مہینہ ختم ہونے والا تھا، ان کی کریموں پر ڈھیر
ख़त्म होने वाला था, तो वो कुछ खरीदारी करने के लिए बाज़ार जाने लगी। अभी देखिए मोहल्ले के किसी लड़के की किस्मत फूटने वाली थी, क्योंकि मूसा तो उनके बाज़ार जाने का सुनकर ही रफू चक्कर हो जाता था। बेबे कहाँ की तैयारी आपकी? शहाना ने वहां से गुजरते अपनी बड़ी बड़ी तेज आंखों से मासूमा को नोट गिनते देखा तो पूछे बगैर न रह सकी। नहीं तो कोई मेरी माँ लगी है या मेरे बाबा जी ने दुनिया से रुखसत होने से पहले तुझे मेरे सर पर कम सुइयां लेने के लिए मुसल्लत किया था, जो मैं तुझे बताऊं? और ये अपनी बहादुरी जैसी शक्ल देखा ना, बारिश ना आया, बाहर ना आया कर। मासूमा भी तख्त पोश का सहारा लेकर खड़ी होते हुए बोली, हाय नंद किशोर, इस छन्नू बांदरी को तो आप एक एक गल जाकर बताती हो। मैंने पूछ लिया तो कोई तूफान तो नहीं आ गया? और खुद गुस्से मुंह के साथ मुझे बांदरी कहना आपको जेब नहीं देता? मेरी शक्ल पर तो एक जमाना मरता है। वो एक अदा से तीजे नचाकर बोली तो मासूम अब्बी ने बतीसी निकाली, जिसके अगले दो दांत गए थे। हाँ, ये तो सही कहा तूने, जो भी तेरी मनहूस बूथी देख रहे हैं ना, उसका खौफ से ही मर जाना है। बगैर शहाना के कोई बात सुने वो खरामा खरामा चलती घर की दहलीज अबूर करके। ये भी इनकी जवानियां जो रींग रींग कर चल रही है, बढ़ापे में तो ये फिर जमीन के सीने से लगी नजर आएंगी। हाँ, ये शकील इधर आ। गली के नुक्कड़ पर खड़ी वो आंखों पर हाथ रखे चुन्नी आंखों से इधर उधर देखती मोहल्ले के किसी लड़के को तलाश करी थी। शकील पर नजर पड़ते ही उसे पुकार बैठी। शकील ने दूर से उन्हें देखकर वापस मुड़ना चाहा, लेकिन तब तक वो उसे देख चुकी थी। आज तो मेरी किस्मत फूटी फूटी। हाँ जी अम्मा जी, क्या हाल है? ठीक ही लग रहे हो। मैं जरा काम से जा रहा था तो फिर मिलता हूँ, खुदाफिज। वो जुरत बड़े अंदाज में कहकर जाने वाला लगा तो मासूमा बी ने तनक कर उसे देखा। ਵੇ ਟੁੱਟ ਮਰਨਿਆ ਇੱਥੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਆ मेरा पुत्र, मुझे ये बाजार तक तो ले जा, बस आधा घंटा तो लगना है। चल मेरा चंगा पुत्र। शुरू में कुलस कर बोलती, आखिर में अपने लहजे को शीरी करते हुए बोली, अल्लाह किधर फंस गया मैं? अच्छा मैं मोटरसाइकिल लाता हूँ। मुंह के जाविये बिगाड़ता वो जाकर बाइक ले आया। मासूमा बी ने उसके कंधे को दबोचा तो कराह कर रह गया। बड़ी तगोदो के बाद उसके पीछे बाइक पर बैठी तो बाइक आगे से उठ शकील घबराकर हवा में टांगे चलाने लगा। वे शकीला छोड़े, मैंने मारंदा राधा है तेरा। उसकी गर्दन में बाजू का फंदा डालकर सहारा लेती उसकी गर्दन पे चपेड़े मारने लगी। इससे पहले कि मोटरसाइकिल उलटती, किसी राह गुजर ने जल्दी से उनकी मदद करते बाइक को सीधा किया। मासूमा भी जैसे ही बाइक से उतरकर सांस हमवार करने रुकी तो वो बगैर पीछे देखे बाइक उड़ाकर ले गया। पीछे वैसे आवाजें ही देती रहेगी, लेकिन वह ऐसा भागा कि पलट कर न देखा। गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो बाहर निकला। लीजा रिज की तलखी थी, श्री ये जगह कुछ पुरानी पुरानी नहीं? अम्मी सनग्लासेस को सर पर ढकाती वो आलिम बिला के सामने आकर रुकती, जायजा लेती नजर नजर से देखने लगी। नहीं, बहुत जबरदस्त महल है, अंदर से देखो कि यहाँ के मकीनों के जोक की कायल हो जाओगी। हमने बारी को बता तो दिया था ना कि इसके घर वाले सीन ना क्रिएट कर दे। इन्फॉर्म कर दिया था, आता ही होगा। तकरीबन 5 मिनट के बाद बारिश बड़ा सा दाखिली दरवाजा धकेल कर बाहर निकला। हाय बडी, कैसे हो? शहरयार उससे बगलगीर हुआ। फाइन, मुस्कुराते कहते वो लीसा की तरफ पलटा। कैसी हो? अंदर चलो, बाकी हालचाल अंदर चल के पूछते हैं। बारिश खुशगवारी से कहता उन्हें साथ ही अंदर की तरफ बढ़ा। बारी, कितना बदल गई हो तुम। तुम्हारी लुक्स भी पहले से काफी अच्छी हो गई है, लीजा ने उसके साथ चलते हुए कहा। लीजा के रिमार्क्स पे वो महज मुस्कुरा दिया। घर के बड़ों को पहले ही उनकी आमद का बता चुका था। लीजा शहरयार की कजन थी, जो बाहर के मुल्क से पढ़कर हाल ही में पाकिस्तान आई थी। यहाँ वो पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात को देखने की चाह में आई थी। यहाँ आने के बाद रिहाइश का मसला बना तो उसने शहरयार से मदद मांगी। शहरयार खुद अकेला फ्लैट में रहता था, ऐसे में इसे अपने साथ बैठना कुछ मुनासिब न लगा। इसी सिलसिले में वो बारिश से मशवरा मांगने आया था, क्योंकि जिस तरह के हालात थे, लीजा का अकेले घर में रहना उसके लिए काबिल कबूल नहीं था। लीजा उसके कज़न होने के साथ उसकी और बारिश की दोस्त भी थी। बारिश से उसकी दोस्ती यूं हुई कि बिजनेस डीलिंग के सिलसिले में बारिश अबाद आलम के साथ यूके गया था। वहीं शहरयार के हमरा लीजा से उसका तारुफ हो रहा, मोबाइल के जरिए वो राब्ते में थे। बारिश ने उसकी परेशानी का हल यूं निकाला कि उसे अपने आलीशान महल में रहने की पेशकश की, जिसे शहरयार ने काफ़ी पसोपेश के बाद कबूल कर लिया। बारिश ने कहता जी, लेकिन वही जानता उसने घर वालों को किस तरह मनाया था। घर के बच्चे अभी इस वास्ते लाइलम थे। जो ही वो बारिश के हमरा अंदर दाखिल हुई, सहन में मौजूद तमाम खवातीन का मुंह खुल गया। ब्लैक जीन्स शर्ट में मलबूस वो लड़की ने एक आंख न भरी। लीजा बज़ाहिर मुस्कुराई, लेकिन दिल में शदीद उफ़्फ़त का शिकार हुई। दुरखुशा को सबसे पहले होश आया। आ बेटा, वहाँ क्यों खड़े थे लोग? उनके कहने पर वो आगे बढ़ते उनसे मिले। शहरयार उनके सामने प्यार लेने के लिए झुका तो उससे प्यार भरा शिकवा कर दी। बेटे, बड़ी देर बाद शक्ल दिखाई क्या? माँ याद नहीं आती? शहरयार शर्मिंदा हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो उनसे माजरत करता बाकी खवातीन को सलाम कर गया। अब शुरू हो गया मिडिल क्लास लोगों का ड्रामा। लीजा ने कुलझ कर सोचा। वो जल्द से जल्द अपने घर कमरे में जाना चाहती थी। उनको वहां बैठाकर वो अमीना को आवाज़ें देती किचन में गई। आवाज़ सुनकर अमीना हीर के साथ सहन से गुजर के किचन में जाने लगी तो बारिश के साथ चिपक कर बैठी लड़की को देखकर उसे हैरत का झटका लगा। उससे बड़ा झटका हीर को लगा जब उसने सहन के एक साथ तरफ रखे भारी भरकम बैग को देखा।
हीर ने मासूमा बीवी को इशारा किया तो तीखी नजर से लीजा को सरता पैर घूर रही थी। उनको अपनी तरफ मतवज्जा न होते देखकर वो अवीना का बाजू थामे किचन में गई, जहां दुर्खुशा चाय का पानी चूल्हे पर रख चुकी थी। इधर आओ दोनों, ये चाय बना दो, मेहमान आए हैं। मूसा को बेचकर कुछ दूसरा सामान भी मंगा लो। लेकिन मामा, ये लड़की है कौन जो भाई बाहर भाई के साथ चिपकी बैठी है? अमीना तिनक कर बोली। वहां एक बैग भी पड़ा है। हीर भी सवालिया हुई। बारिश की दोस्त है, उसका रहाइश का मसला बन रहा है, इसलिए वो चंद माह यहीं रहेगी। चलो अब ज्यादा बातें ना करो, मूसा को बुला लो। उनके जाने के बाद वो हीर की तरफ पलटी। हीर, ये वही लड़का है? वो मुंह के जाविये बिगाड़ कर बोली। है? कौन था ये जो बाहर बैठा है इस चुड़ैल के साथ? हीर फौरन से पहले बोली, हाँ वही, ये बहुत गुस्सा आ रहा है दोनों पर। उस लड़की को देखा कैसे कपड़े कपड़े पहन कर बैठी है, मुझे देखकर ही शर्म आ रही है। यार वीना, अब तो यहीं रहना है इसने। वैसे जिस तरह वो प्रोफेसर के साथ चिपक कर बैठी है, मुझे तो उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। बारिश के साथ किसी लड़की को देखकर अंदर ही अंदर वो जलन का शिकार हुई। बाढ़ में जाए वो भी। तुम ये चाय वगैरह बाहर ले जाओ, इस शोधे के सामने तो मैं नहीं जा रही। अमीना ख्वामख्वाह अपने बालों में हाथ फेरने लगी। ओहो, तुम्हें शर्म आ रही है क्या? मुझसे छेड़ने लगी। हूँ, शर्म आती है मेरी जूती को? कि शरारती मुस्कान से देखती लवासमान से बड़ी ट्रे उठाकर बाहर निकल आई। उनका सलाम करके उन्हें चाय पेश करने लगी। लिज़ा ने उसका तफसीली जायजा लेते इस्तहज़ाइया मुस्कुराकर सिर झटका। इर्द गिर्द देखते उसने हीर से चाय का कप पकड़ते जानबूझकर हाथ हिलाया, जिससे थोड़ी सी चाय उसके हाथ पर गिर गई। तुम पागल हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अजीब लापरवाह मुलाजमा रखी है आपने। उसने इसे जानबूझकर मुलाजमा कहा था। हालांकि यहाँ आने से पहले उस घर के हर फर्द के बारे में मालूमात लेकर आई थी। सबके चेहरों पर गहरी संजीदगी छा गई। हीर की आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी से उठती वहां से चली गई। वो मेरी कजन है लीजा, कोई मुलाजमा नहीं। बारिश शहाना के संजीदा चेहरे को माजरत खाना नजरों से देखते हुए लीजा से, आई एम सॉरी भारी, उसका गेटअप ऐसा था मुझे लगा कि वो। शहाना वहां से उठकर चली गई। ओके यार, मैं चलता हूँ अब। शायद खड़ा हुआ तो बारिश भी उठ खड़ा हुआ। बेटा बेटा, इतनी जल्दी जा रहे हो? दुर्खुशा के सवाल पर वो मुस्कुरा दिया। इंशाल्लाह फिर आऊंगा। और लिजा की तरफ से माजरत करता हूँ। उनके सामने सर झुका था, हल्की आवाज में बोला तो मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं बेटा, उसे पता नहीं था। ओके, सबको खुदा हाफिज। बारिश के साथ वो बाहर चला गया, लेकिन जाते जाते किचन से झांकती अवीना पर गहरी नजर डाला ना भूला। उसकी गहरी अंदर तक उतरती नजर पर अमीना की धड़कनों में इर्तियाश पैदा हुआ। ठड़की। उसे नए लकब से नवाजती वो लीजा के बारे में मजीद मालूमात लेने के लिए दुर्खुशा के कमरे की तरफ बढ़ी। हीर अपने कमरे में गुमसुम सी बेड पर ऊँधी लेटी थी। आज लीजा ने जो हरकत की थी, उसका दिल बहुत दुखा था। उसके चेहरे पर फैला इस्तेज़ा से बहुत कुछ बावर करवा गया। लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी उसने इसके साथ ऐसा क्यों किया। ऊपर से बारिश को चुप रहना उसे और भी खिल रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो चाहती थी कि बारिश उसकी हिमायत करे। उसके खुलंडरे कोम्पल से नरम और शफाफ दिल में मोहब्बत की सुनहरी किरणें फूटने लगी थी, जिससे अभी वो खुद भी बेखबर थी। हीर, अवीना मुश्किल से अपनी चीख रोकती आंधी तूफान बनी उसके कमरे में आई। अल्लाह, मैं इतनी खुश हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकती। अल्लाह, मेरी दिली मुराद पूरी होने जा रही है। वो उसे उठाती फरते मुसर्रत से नॉन स्टॉप बोलती जा रही थी। हुआ क्या है, कुछ बताओगी भी? उसके गोल गोल घुमाने पर हीर ने चकराते सर पर हाथ रखते से पूछा। यार, मैं अभी दादी के पास कमरे के पास से आई हूँ। वहाँ मामा बाबा दोनों चाचू, मतलब सभी इकट्ठे हुए हैं। बच्चों को बहाने से उन्होंने दूसरी दूसरी तरफ भेजा तो मुझे शक पड़ गया कि जरूर कोई बात है। वो हाथ हला हला कर बताने लगी। यार, इतनी लंबी लंबी ना फैन, सीधी तरह बता। एक तो पहले ही मेरा मूड खराब है, ऊपर से तू बक बक किए जा रही है। तो ताकर बोली तो अमीना की चलती जुबान को ब्रेक लगा। क्यों, क्या हुआ? मूड क्यों खराब है? छोड़ इस बात को। और मंजर फिर से याद आते उसकी आंखें गीली होने लगी। अमीना तो उसकी आंखों में आंसू देख कर तड़प गई। मुझे बता, किसी ने कुछ कहा है? मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। उसका पटाखा मूड ऑन हो गया। अमीना की मुसलसल इस राह पर उसने सारी बात उससे कह दी। अमीना का गम और गुस्से से बुरा हाल हो गया। हीर, तू ठीक कह रही है, जरूर ये किसी और मकसद से आई है यहाँ। लेकिन तू टेंशन न ले, मौका मिलने पर इसकी बेइज्जती का बदला जरूर लेंगे। अच्छा छोड़ो इसे, मैं इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। तुम क्या कह रही थी? हीर बेड के किनारे टिकते हुए बोली। तो अमीना चमकती आंखों से उसके साथ बैठी। यार, मैं दरवाजे से कान लगाकर उनकी बातें सुन रही थी। दादा जान कह रहे थे कि सब बच्चियां जवान होगी, अब उनके ब्याह के बारे में सोचो। खैर से इस साल तालीम भी मुकम्मल हो जाएगी इनकी। तो दादी कहती है रिश्ते तो घर में भी है। समझ रही हो? वो शरारती मुस्कुराहट से उसे देखने लगी। क्या मतलब? हीर तो धड़कते दिल से पूछा। हाँ यार, मुझे तो सोच कर भी हंसी आ रही। वो मूसा और रबिया के रिश्ते की बात कर रहे थे। हाँ हाँ, उसकी देखा देखी हीर भी हंसने लगी। और तू ना मेरी भाभी बनने के लिए तैयार हो जा। अमीना ने उसके सर पर धमाका किया और फटी आंखों से उसे देखने लगी। होश में तो हो? क्या कर कह रही हो?
प्रोफेसर तो कभी नहीं मानेंगे, नेवर। वो नफी में गर्द हिलाने लगी। भाई से भी बात करेंगे ना पागल, अभी तो बड़ों में है ये बात। तुम अपनी बताओ, तुम तो राजी हो ना? वो उसे कंधा मारती छेड़ने लगी तो हीर जिंदगी में पहली बार शर्मा गई। ओहो, लोगों को शर्म आ रही है। अवीना के छेड़ने पर वो सुर्ख चेहरा हाथों में छुपा गई। अगली सुबह तीनों ने यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर ली। तब करीन आलम ने बारिश पे जल्दी आने का कहा था कि उन्होंने जरूरी बात करनी है। सब नाश्ते की मेज पर बैठे नाश्ता कर रहे थे कि लीजा ढीली सी टी शर्ट ट्राउजर में जमाई रोकती हुई और कुर्सी घसीट कर बैठ गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अमीना और हीर ने उसे देखकर आंखें घुमाई जबकि रिजा उसे देखकर मुस्कुरा दी। जवाबन लीजा भी उसे देखकर मुस्कुराई। ये बंदी से कुछ बेहतर लगी थी। रबिया ने हीर के कान में सरगोशी की। ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी जिस हिसाब से उसने मुंह पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। मुझे तो माइकल जैक्सन की बहन लग रही है। उसकी गौर अफसाने पर हीर के हलक में नवाला फंस गया जबकि अमीना की हंसी निकल गई। सब खाना छोड़कर उन्हें देखने लगे तो वो सर झुकाकर शराफत से खान नाश्ते करने लगी। लीजा ने तीखी नजरों से उन्हें देखा। मूसा जल्दी से नाश्ता खत्म करता उठा और उन तीनों को लॉन में आने का इशारा करता वहां से चला गया। नाश्ता करने के बाद उन्होंने जल्दी से बर्तन समेटे और लॉन में चली आई। लीजा ने नागवारी से रबिया को उनके साथ जाते देखा। उसे रबिया के उनके साथ मेल जोल जरा पसंद नहीं आया था। लॉन में सुबह की ठंडी ठंडी तरोताजा हवा ने उनका इस्तकबाल किया। फूलों से उठती धीमी महक में गहरे सांस लेती वो वॉक करने लगी। मूसा अचानक उनके पीछे से नमोदार हुआ। अवीना ने कोफ्त से उसे देखा। क्या हर वक्त बंदरों की तरह इधर उधर फुदकते रहते हो? उसको बंदर कहने पर रबिया ने मुस्कान दबाई जो मूसा को एक आंख न बाई। वो अपने इकबाल साहब है ना? वो गया हुआ तो हीर ने आंख छोटी करके उसे देखा। कौन इकबाल साहब? अरे वही अपने शायरे मशरिक अलामा इकबाल। हीर का हाथ जूते तक जाता जाता रुका। अरे तेरे बाबा लगे हैं क्या वो? बड़ा है अपने इकबाल साहब। अपने सुखरी होने पर वो डीठो की तरह मुस्कुरा दिया। अच्छा सुन तो, वो क्या कहते हैं मेरे बारे में? मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों में, तब खाक के पर्दे से कद्दू निकलते हैं। मूसा जो इंसान कहने वाला था हीर ने उसका शेर उचक लिया और गधे एक बाल कर ही मीर तक की मीर का शेर है। हाँ हाँ हाँ, अमीना और रबिया हंस हंस कर दूरी हो गए। हाँ ही हीर भी हंसती हुई वहां से भागी क्योंकि मूसा खतरनाक तेवरों से उसकी तरफ बढ़ा था। अमीना रबिया के साथ पीछे हटकर खड़ी होगी क्योंकि अब पूरे घर में तूफान बदतमीजी मचने वाला था। बारिश थका थका सा आलम बिला में दाखिल हुआ। यूनिवर्सिटी में हीर वाला मामला बहुत मुश्किल से रफा दफा हुआ था। मुसलसल बहस और काम के बोझ की वजह से उसका सर शदीद दर्द कर रहा था। कनपट्टी को दबाकर वो बगैर किसी की तरफ देखे अपने कमरे में चला गया। लीजा जो कब से उसका इंतजार कर रही थी उसे देखकर उसके कमरे में जाने के लिए बेताब हुई। लेकिन शहाना की कड़ी नजर खुद पर मरकूज पाकर सिलपती हुई बाहर लॉन में चली गई। बारिश जब फ्रेश होकर खाने वगैरह से फारिग हुआ तो सब कटकीन आलम अपाद आलम दुर्गुशा के साथ उनके कमरे में दाखिल हुए। उन्हें देखकर वो उठ खड़ा हुआ। बैठ बैठ पुत्र। वो तीनों कमरे में रखे सोफे पर विराजमान होके। आज सब यहाँ खैरियत तो है? वो शराबा सवाल बना। हाँ बेटा, सब खैरियत था अब्बा जी, बल्कि घर के बड़ों ने सब बच्चों के लिए कुछ फैसले किए हैं। इसी सिलसिले में तुमसे बात करने आए थे। अबाद आलम गोया हुए। उन्हें पूरा यकीन था उनका बेटा बड़ों के फैसले की लाज रखेगा। वो खामोशी से उन्हें देखने लगा। बेटा माशाल्लाह सब बच्चे जवान हो गए, तब हमारे ख्याल सबको अपने घरों का हो जाना चाहिए। ये काम जितनी जल्दी निपटा लिए जाए तो इतना बेहतर है। मूसा के लिए हमने रबिया का इंतखाब किया है। अपने घर की बच्ची समझदार है। बहुत अच्छा लगा सुनकर, मुझे दिली खुशी हुई। वो मुस्कुरा कर बोला, लेकिन उनकी अगली बात सुनकर उसकी मुस्कुराहट पल में सिमटी। और हीर के लिए तुम्हारा इंतखाब किया क्या? वो हक दक्सा कहता खड़ा हो गया। दरवाजे से कान लगाकर सुती हीर का दिल भी जोरों से धड़कने लगा था। अवीना ने टेंशन से नाखून चबाने शुरू कर दिए। इस हीर के साथ मेरी शादी करना चाहते हैं? इतना क्या गुजरा समझा है आपने मुझे? वो नागवारी से बोला। बारिश। दरख्वशा ने अबाद आलम के केस से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर बारिश को डपटा। फॉर गॉड सिक मामा, मैं हरगिज हीर से शादी नहीं करूंगा। मर मर के पास होती है। और उसका हुलिया देखा है आपने? जरा भी पहनने ओढ़ने की भी सेंस नहीं है उसके अंदर। उस नालायक के लिए मैं ही नजर आया था आपको? बस। सबकतगीन आलम ने अफसोस भरी नजरों से उसे देखा। हीर की बर्दाश्त की हद तमाम हुई। वो बाजू चढ़ाती ठाक की आवाज से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ओ हेलो प्रोफेसर। हीर को समझा क्या हुआ आपने? खुद अपने आप को देखा कभी? इंतहा के खड़ूस और बदतमीज हैं आप क्या इनकार करेंगे? मैं खुद आपसे शादी नहीं करूंगी। आज से तो जिसकी शादी होगी उसकी तो किस्मत फूटेगी। बड़े आए मुझ में खामियां निकालने वाले। सबकतगीन आलम पर एक गहरी नजर डालकर वो तन फन करती बाहर निकल गई।
اسے ایک نظر نے سبقت کی، ان عالم کے اندر سناٹے بکھیر دیے تھے۔ کیسے گلا کرتی نظر تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ بغیر کسی کی طرف دیکھ کے باہر چلے گئے۔ درخشاں اور آباد عالم کو خود کو ملامتی نظروں سے دیکھتا پا کر وہ غصے سے کمرے سے گیا، گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ مما، ہیر آہستہ سے دروازہ دھکیلتی شہانہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ہیر کو صبح صبح اپنے کمرے میں پا کے ذرا حیران ہوئی۔ پتر، تو ابھی تیار نہیں یونیورسٹی کے لیے؟ اس کے پاس آتی استفسار کرنے لگی۔ وہ سر جھکا کر اپنے پیروں کو دیکھنے لگی۔ میں اب یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ ہیں؟ کیوں نہیں جائے گی؟ صبح صبح کیا ہو گیا تجھے؟ وہ اس کا چہرہ اونچا کر کے پوچھنے لگی۔ میں اب ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، کہتے ساتھ ہی وہ پھپ پھک کر رو دی۔ سب کے سامنے ہزاروں اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرتی، لیکن اندر سے وہ بے حد دکھی تھی۔ اسے روتے دیکھ کر شہانہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اسے ساتھ لگایا اور بیڈ کی سمت بڑھی اور اسے اپنے ساتھ بٹھا کر اسے سینے سے لگائے اس کا سر تھپکنے لگی۔ باریس کے انکار پر انہیں بھی دکھ پہنچا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ رشتے زبردستی تو نہیں جوڑے جا سکتے۔ بس کر میری جان، ادھر دیکھ، ٹھیک تو ہے نا تجھا؟ لیکن تیرے تو ایسی سال ضائع ہو جانا ہے۔ وہ آنکھیں پونچھتی سیدھی ہو بیٹھی۔ میں ایگزامز میں چلی جاؤں گی، باقی میں اپنی تیاری گھر میں ہی کر لوں گی۔ میں تیرے ابا سے بھی بات کر لوں گی ایک بار، وہ پرسوچ انداز سے بولی۔ ٹھیک ہے۔ وہ خود کو نارمل کرتی کمرے سے نکلی۔ باہر نکلتے ہی اس کی نظر باریس سے ملی جو یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اسے نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ باریس نے سرسری نظروں سے دیکھا جو گھر کے عام لباس میں اس کے سامنے سے گزری تھی۔ ہیر، تو کیوں نہیں جا رہی یونی؟ امینہ زور سے اس کے کمرے میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی اس سے پوچھنے لگی۔ امینہ اس وقت میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، پلیز۔ وہ رخ موڑ کے خواہ چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ نظریں کیوں چرا رہی ہو مجھ سے؟ یار مت کرو نا، تم نے کیوں چھوڑ دیا یونی؟ میں تمہارے بغیر کیسی رہوں گی وہاں؟ وہ اداس نظروں سے اسے دیکھتی سوال کرنے لگی۔ ہیر کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ امینہ پلیز، میں نہیں جانا چاہتی۔ وہ بیڈ کے کنارے ٹکتی اٹک اٹک کر بولی۔ بھرا ہوا گلا باہر آنے کو بےتاب تھا۔ امینہ اس کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ تم بھائی کی وجہ سے نہیں جا رہی ہو نا؟ ہیر کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگی۔ وینا، میں اتنی بری نہیں ہوں جتنا انہوں نے مجھے بنا دیا، سب کے سامنے مجھے شرمندہ کر دیا۔ وہ باہر ریجا اور لیزا ہنس رہی تھی مجھ پر، میری عزت نفس پر گہرا وار کیا انہوں نے۔ میں اب کبھی بھی ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ گھر میں تو میں اپنے کمرے تک محدود ہو سکتی، لیکن یونی میں ان کے لیکچرز ہوتے ہیں، میں اب ان کو اپنے سامنے بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ پلیز مجھے فورس نہ کرو۔ اس کی تقریر پر اوینہ کا دل بھی دکھ سے بھر گیا۔ بھائی نے غلط کیا ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں فورس نہیں کرتی، زیادہ سوچنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسے گلے لگاتی وہ گاڑی کا ہارن سن کر اجلت میں باہر نکل گئی۔ موسیٰ کے ہمراہ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی یونی میں داخل ہوئی۔ وہ دونوں راستے میں کل والے معاملے پر بات کرتے رہے تھے۔ یار جو بھی ہے، بھائی کو اگر وہ نہیں پسند تو بھی اس کی ایک انسلٹ کرنے کا بھی حق انہیں نہیں تھا۔ وہ باریس سے خفا تھی۔ صحیح کہہ رہی ہو، وہ بھی کچھ بجا سا تھا۔ روز وہ تینوں ساتھ ہی یونی آتے تھے، آج اسے سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ کلاس کے باہر انہیں باریس مل گیا۔ اوینہ نے اسے دیکھ کر نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ ہیر نہیں آئی آج ٹیسٹ اور وہ چھٹی کر کے بیٹھ گئی۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے گویا ہوا۔ پروفیسر باریس تو اب یونی نہیں آئے گی، آپ کو اب مزید اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا پڑے گا، موسیٰ سنجیدگی سے بولا اور اوینہ کو ساتھ لیے کلاس میں داخل ہو گیا۔ باریس نے لب بھینچ کر انہیں دیکھا۔ سنجیدہ چہرہ لیے وہ پہلے لیکچر کے لیے مطلوبہ کلاس میں چلا گیا۔ صحن میں بچھے تخت پوش پر معصومہ بھی دوپٹہ کان کے پیچھے رس کر چاول چننے میں مصروف تھی۔ ان کے سامنے تینوں کرسیوں پر درخشاں، شہانہ اور بلقیس بیٹھی میز پوش پر کڑھائی کر رہی تھی۔ بیبے، وہ پڑوس سے چھنوں باندھ رہی آئی تھی، بتا رہی تھی موٹر سائیکل نے آپ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ شہانہ آنکھیں مٹکا کر بولی تو ساتھ بیٹھی بلقیس نے مسکراہٹ دبائی۔ معصومہ بھی ان کا اشارہ سمجھ گئی۔ لو، میرا وزن ہی کہ ہے ہی کتنا بھلا، یہی کوئی 40-45 کلو، موٹر سائیکل تو نکمی کی وجہ سے الٹی کھوتے کو چلانی ہی نہیں آتی۔ ان کے وزن کی بابت سنتے شہانہ کا قہقہا چھوٹ گیا۔ واہ، یہاں تو خوب محفل جمی ہوئی ہے۔ لیزا بلیک ٹراؤزر شرٹ میں معصومہ بھی کے پاس بیٹھ کے درخشاں اور شہانہ کے چہرے سنجیدہ ہو گئے، جبکہ بلقیس سے دیکھ کر آنکھیں گھمائی۔ کیا کریں آپ؟ اور معصومہ بھی کو چاول چنتے دیکھ کر بولی۔ لڈو کھیلنے تو بھی کھیل لے، وہ مسکرا کر بولی تو لیزا کی مسکراہٹ پھیکی ہوئی۔ بڈھی کہیں کی ہوں۔ اچانک اس کی نظر باریس پر پڑی جو سنجیدگی سے دیکھتا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے معصومہ بھی کی طرف مڑی۔ دادی مجھے بھی دے، میں دیتی ہوں یہ۔ چہرے کو ازحد معصوم بنا کر ان سے مخاطب ہوئی۔ نہ کڑیے، تیرے کولوں نہیں ہونا، تو کی جانے کار دے کم کاج۔ ان کے ٹکے سے جواب پر وہ اداس چہرہ بناتی اٹھ کھڑی ہوئی، چند قدم آگے جا کر سامنے سے آتے باریس کو ذرا کی ذرا دیکھ کر لڑکھڑائے۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، باریس نے جلدی سے بازو تھام لیا۔ آرام سے۔ ٹھیکا سا مسکرا کر وہ ریجا کے کرنے میں چلی گئی۔ دونوں ہیر کی مخالف تھی، اسی لیے ساتھ مل گئی تھی۔
जब से उन्हें रिश्ते की बाबत मालूम हुई थी, दोनों अंगारों पर लौट रही थी। ये अलग बात है कि लिजा को मालूम ही नहीं था कि लिजा बारिश के पीछे है, वरना वो कभी इसके साथ न मिलती। उसके जाने के बाद बारिश उसकी छोड़ी जगह पर बैठ गया। मम्मा, पानी मिल सकता है? दुर्खशा बगैर उसकी तरफ देखकर उठकर किचन में चलेगी। तो ये तेरे इनकार की वजह थी? शहाना की आवाज पर वो लब भींच गया। उनका इशारा खुद समझ गया, यही समझ ले। वो बेतासुर चेहरे के साथ वहां से उठकर चला गया। दिन जैसे पड़ लगाकर उड़ रहे थे। आज उसे यूनिवर्सिटी छोड़े 1 महीना होने का था। इस दौरान उसने खूब दिल लगाकर एग्जाम्स की तैयारी की। वह तकरीबन सारा दिन पढ़ाई में मसरूफ रहती। इस दौरान अमीना भी अक्सर उसके साथ पाई जाती। शुरू शुरू में वो बारिश का सामना करने से झिझकती रही, लेकिन फिर उसने अपने अंदर की सोई हुई हीर को जगाया। उसे वो अपनी ग्रोमिंग पर भी खास तवज्जो देने लगी। उसकी शख्सियत में अलग ही निखार पैदा हुआ था। अभी वो आईने के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी। स्याह घने बाल कुंदों से होते हुए नीचे आते। बाल जो पहले छुट्टियां में मुकैयद रहते थे, अब कमर से नीचे गिरते स्याह चमकदार आबशार का मंजर पेश कर रहे थे। उसके बाल पहले से बेहद सिल्की हो गए थे। माथे पर कटे बाल लंबी लंबी लटों की सूरत में इख्तियार करके थे। चश्मे की जगह आंखों पर गहरे लेंस लग चुके थे, जबकि उसका लिबास भी बदल चुका था। अब वो ज्यादातर कैपरी शर्ट्स और शर्ट के साथ ट्राउजर से तन करती थी, जो उस पर बेहद बली लगती थी। शहाना तो उसके वारी सदके जाते न थकती थी। अब भी वो मैरून रंग की कैपरी शॉर्ट शर्ट पहने आईने के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी। बालों को उसने ढीली पौनी में कैद करते पीछे कमर पर खुला छोड़ दिया। गाल से टकराती आवारा सिल्क की लटों को कान के पीछे रचती वो स्पार्ट चेहरे के साथ कमरे से बाहर है। मम्मा, क्या कर रही हैं? तो किचन में झांकी इस्तफसार करने लगी। वो तो चाय बना रही तेरे अब्बे और ताए वगैरह के लिए। बस बन गई है। लाए, मैं दे देती हूँ। बाबा को और ताया जान को भी मिल लूंगी। काफी दिन हो गए, मुलाकात ही नहीं हुई। वो सादगी से कहती उनके बराबर खड़ी होती, कपों में चाय अंधेरने लगी। पुत्र इतनी संजीदा न रहकर पहले की तरह हंसा कर। पहले तो तू इतनी शरारतें करती थी। तो प्यार से उसे देखकर बोली, मामा मैं अब भी वैसी हूँ, बस हर वक्त ये शरारतें करना अच्छा नहीं लगता। वो मुस्कुरा कर बोली, तो मेरी धी तो बड़ी समझदार होगी है। चल चाय दे आ, ठंडी हो जाएगी। वो उसे कहकर किचन का फलावा समेटने लगी। उसने एहतियात से ट्रे में कप और चंद स्नैक्स रखे और ट्रे उठाकर मर्दान खाने की तरफ चल पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। दरवाजा खोलकर वो खुशगवारी से सलाम करते अंदर दाखिल हुई। माशाल्लाह, आज हमारी बेटी बड़े दिनों बाद नजर आई। अबाद आलम ने प्यार से उसे देखते हुए कहा तो मुस्कुरा दी। उसे अपने पुष्ट पर किसी की नजरें महसूस हुई तो वो ट्रे लकड़ी की बड़ी सी मेज पर रखते पलटी। उसकी निगाह बारिश से टकराई, जो आज तकरीबन 1 महीने बाद उसे देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी उभरी थी। वो कितनी बदल गई थी। उसने एक नज़र उसे देखते उस पर से नजर हटानी चाहिए, लेकिन नजरें हटने से इनकारी हुई। हीर से नजरअंदाज करती इब्राहिम आलम की तरफ जाती उनको चाय का कप थमा के। अबाद आलम के बाद बारिश को बेतासुर चेहरे से चाय का कप थमाती वो इब्राहिम आलम के साथ बैठ गई। पहले तो उसने सोचा वहां से चली जाए, लेकिन फिर अपने ख्याल को चटक किया। मेरी बला से वो यहाँ हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे बेटे की पढ़ाई कैसी जा रही है? इब्राहिम आलम इसके गिर्द बाजू हाइल करते उसका सर चूम कर बोले, बहुत बहुत अच्छी। मेरी तकरीबन तैयारी मुकम्मल हो गई है। वो उनके गिर्द बाजू हाइल करती मुस्कुरा कर बोली, माशाल्लाह। वो मुस्कुरा दी। अरे रे बाप बेटी तो मुझे फरामोश ही कर बैठे हैं। अबाद आलम हाथ में पकड़ा अखबार तह करते हुए बोले। वो हल्का सा हंसती उन दोनों के दरमियान जगह बनाती बैठी। यहाँ से सीधी इसकी निगाह बारिश से टकराई, जो चाय का कप खोंटा से लगाए उसी जानब ही देख रहा था। उसके देखने पर वो नजरों का जाविया मोड़ गया। ताईजान, आपसे एक बात की इजाजत लेनी थी। इब्राहिम आलम से वो पहले ही बात कर चुकी थी। बोला, बेटा मेरा बेटा। वो खाली कप मेज पर रखते उसकी जाने पूरी तरह मतवज्जे हुए। ताईजान, वीडियो की ट्रिप जा रही है, हम भी जाना चाहते हैं। कितनी देर हो गई हम इकट्ठे आउटिंग पर नहीं गए। प्लीज आप अवीना को भी परमिशन दे दे प्लीज। वो उन्हें उम्मीद से देखने लगी। बेटे, मैंने अवीना को भी समझाया था, आजकल का दौर अच्छा नहीं है। हम फैमिली टूर पर चले जाएंगे। इन अदारों के साथ जाना कुछ मुनासिब नहीं लगता। वो उदास होगी। ताईजान, सब फ्रेंड्स भी होंगे, हाँ, और हमारा लास्ट ईयर भी है, दोबारा कहाँ ऐसा मौका मिलना, प्लीज मान जाए ना। वो उनसे लिपटती लाड से बोली तो वो बेचारगी से इब्राहिम आलम की तरफ देखने लगे, जो मुस्कुराकर उनकी तरफ ही देखते थे। कोई बात नहीं भाई साहब, इजाजत दे दे। बारिश भी तो होगा ना साथ, बच्चियां खुश हो जाएंगी। इब्राहिम आलम की हिमायत पर उन्हें हार मानते ही बनी। चलो ठीक है, खुश रहो। उसके सर पर प्यार देकर बोले तो वो खुशी से हंसती हुई उठी। मैं अमीना को बता कर आती हूँ। जल्दी से वो दरवाजे की सिमत बढ़ी। बारिश पर एक उचटती निगाह डालकर वो बाहर चली गई। बारिश की नजर उसकी कमर पर लहराते स्याह सिल्की बालों से उलझ कर रह गई। दूसरा और आखिरी हिस्सा इंशाल्लाह कल। अब आप लोग बताइए कि बारिश और उसके दरमियान सब कुछ कैसे ठीक होगा, और उन दोनों के दरमियान मोहब्बत का आगाज कैसे टूर के दौरान होगा। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।